السلام علیکم، گڈ مارننگ. صبح 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بہترین ہوں گے. ایک اور نیا ویک اور کچھ اور نئی باتیں. ویسے ویکینڈز پہ کیا رش ہوتا ہے مالز میں. کراچی کی تو خاص طور پہ میں بات کروں گی کیونکہ کراچی میں ہم رہتے ہیں, اور ویکینڈ پہ جو رش ہے جو بڑھتا جا رہا ہے رمضان سے پہلے, عید سے پہلے, تو دل سے ہمیشہ یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو, اس تمام شادمانی کو, اس تمام روشنی کو اسی طرح برقرار رکھے, قائم و دائم رکھے. بہت مزہ آتا ہے اس طرح سے دیکھ کے کہ سب لوگ خوش ہیں, سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں, سب لوگ چاہتے ہیں کہ شاپنگ بھی کی جائے, فیسٹیوٹی کا بھی ارینجمنٹ ہو. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم مختلف چیزوں پہ بات کریں گے. آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شو کے ڈفرینٹ پارٹس کے ڈویژنز ہوتے ہیں جو ہم آپ کو آپ کی پسند کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ آج کا جو میرا کوٹ اسٹائل ڈریس ہے دس از بائی آغا نور, کیونکہ بعد میں پھر بالکل موقع نہیں ملتا. اور آغا نور از ون آف دا ویری گڈ ڈیزائنرز, اور آغا نور کے ساتھ تو یہ معاملات ہیں کہ ان کا اسٹاک مارکیٹ میں آتا نہیں ہے کہ بک جاتا ہے فوراً. ایسے جیسے ہی ان کے اسٹائلز آتے ہیں ان کے اسٹور پر, ویسے ہی لوگ ایک دم سے وہاں جاتے ہیں اور ان کے سارے ڈیزائنز میں دیکھتی ہوں کہ سولڈ آؤٹ ہو گئے. خیر, آج کے پروگرام میں شروع میں ہم خبروں پر تبصرہ کریں گے. بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کریں گے. اگر ہمیں موقع ملا تو آرٹس پہ بھی کچھ ہمیں بات کرنے کا آج پلان کیا ہوا ہے, سوچا ہوا ہے. سیکنڈ آور میں ابھی آپ کو اس بارے میں کالز نہیں کرنی ہے, لیکن آپ مینٹلی طور پہ تیار ہو جائیے. اور سیکنڈ آور میں آپ ہمارے پروگرام میں اس طرح شامل ہو سکتے ہیں کہ آج کل جو ایونٹس ہیں, چاہے وہ برتھ ڈے ایونٹ ہو, چاہے وہ شادی ہو, چاہے وہ آپ کا کارپوریٹ ایونٹ ہو, چاہے کوئی اور چیز ہو, اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے. اور ایک عام سے ایونٹ کو, جو پہلے ایک سالگرہ کا عام سا ایونٹ ہوتا تھا کہ وہ برتھ ڈے کیپس ہوتی تھی, کیک ہوتا تھا, بچوں نے کلرفل کپڑے پہنے ہوتے تھے, بلونز ہوتے تھے, تھوڑی بہت سجاوٹ ہوتی تھی, اینڈ دیٹس اٹ. اب باقاعدہ تھیمز ہوتی ہیں, اسی حساب سے آپ کے کیک ہوتے ہیں, کپ کیکس ہوتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یا گڈی بیگز ہوتے ہیں. وہ سارا تھیمیٹک ہوتا ہے, لوگوں نے کپڑے اس طرح سے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی فار برتھ ڈیز, شادی کے لیے انٹریز پلان کی جاتی ہیں, دلہا دلہن نے کیک کب کاٹنا ہے وہ پلان کیا جاتا ہے, کیک کی فارمیشن پلان کی جاتی ہے. مطلب بہت سی اور ایسی چیزیں آ گئی جسے ہم ایکسٹرا ویگنس کہتے ہیں ویسے, کہ مطلب وہ ذاتی ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شادی یا آپ کا ایونٹ جو ہے وہ مزید پراپر ہونا چاہیے, مزید اچھا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, تو آپ اس حوالے سے آج سیکنڈ آور میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت مہنگی نہیں ہیں, ان کو صرف سمجھنے سیکھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا دماغ لگانے کی ضرورت ہے, جو ہم جیسے کہ میں نے کہا نیکسٹ آور میں ان ڈیپتھ اس کو ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کی کالز بھی انٹرٹین کریں گے. فرسٹ آور میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں, ان کو یہاں مدعو کرتے ہیں. آپ سب انہیں جانتے ہیں اور آج سے ان کا کالم بھی آیا ہے, تو ان کیس آپ کے پاس آپ کا اردو اخبار ہے تو آپ کالم ریڈ کیجئے. اختیار بیگ صاحب کا, جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں, ویری فیمس پرسنالٹی, لکھتے بھی ہیں. ان کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئیے پلیز بیٹھیے. اینڈ وی ہیو دا جرنلسٹ حمید بھٹو صاحب. السلام علیکم حمید صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اور بہت سی ایکٹیویٹیز بھی کراتے ہیں, اور کل ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے, پلیز تشریف رکھیے, کہ کچھ ایوارڈز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ سے وابستہ ہے, تو اس پہ بھی موقع ملے گا تو آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن شروعات اختیار بیگ صاحب آپ سے کرتے ہیں. آج کا آپ کا کالم ہے, خبریں بھی آج بہت اہم ہیں اخبار میں, لیکن کالم اس لیے کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے اپنا پروگرام بھی اسی بات پر کلوز کیا تھا, سی پیک کا, میاں محمد نواز شریف صاحب کا دورہ, اس میں جتنی چیزیں ہوئی سے ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. لیکن آبویسلی آپ کی ایک رائٹنگ ہے اور آپ نے اس کو ایک رائٹر کی حیثیت سے دیکھا ہوگا, تو اینی کرکس آف دیٹ رائٹنگ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ اس میں تو بہت ساری باتیں, بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں. میں نے اپنا کالم بھی لکھا ہے کیونکہ میرے کالم معاشیت پہ ہوتے ہیں, اور بہت بڑا ایک معاشیت کا یہ جز ہے جس پہ میں نے کالم لکھا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ فورم جو چائنا میں ہوا بیجنگ میں, جس میں پاکستان سے سب سے بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا, اور تمام متعلقہ وزیر اس میں شامل تھے, وزیر اعظم کے ساتھ فیڈریشن کے صدر وغیرہ, اور پوری دنیا کے ممالک کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئی تھی. اس میں ایک پنچ لائن یہ تھی کہ چائنا دنیا میں ون بیلٹ ون روڈ کے تحت سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے, دنیا کو آپس میں مزید قریب لانے کے لیے, اور اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا نے پاکستان میں 56 بلین کی ہے, جو وہاں اعلان ہوا. اور یہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ پاکستان سے شروع ہو رہا ہے, خاص کر سے گوادر سے یوروپ اور افریقہ کو ملانے کا. تو یہ بڑی فخر کی بات, اس سے دنیا میں سرمایہ کاروں کا کانفیڈنس بڑا ریسٹور ہوا ہے کہ چائنا اس اہم پروگرام میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری
پاکستان میں کر رہے ہیں اور آلریڈی یہ پروگریس جو ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پروگریس میں ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو میسج تھا جو اس فورم سے ہمیں ملا ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی بات ہے اور اللہ کرے کہ جیسی چیزیں آپ جب بھی آج کی طرح ہمارے پاس لرنڈ لوگ آتے ہیں اور وہ ایک طرح سے پریڈکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں سی پیک کے حوالے سے, تو اللہ کرے کہ وہ تمام چیزیں گیم چینجر, ڈیسٹنی چینجر, یہ سب چیزیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ اللہ نے چاہا جب بھی پروجیکٹ فرسٹ فیز پہلے پورا ہوگا 2018 میں, جس میں ہمیں 10,600 میگا واٹ اضافی بجلی ملے گی, تو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے اور یہ نالت ملک سے ختم ہو جائے تو ہماری یہ نسل جو آنے والی ہے اس کو منہ دکھا سکیں گے, کیونکہ ہم اندھیرے ان کو دیکھے نہیں جا سکتے. دوسری چیز کی سیکنڈ فیز جو ہے جس میں انفراسٹرکچر گوادر پورٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ ایک لاجسٹک دنیا میں انقلاب ہیں, وہ ایک دوسری چیز ہے 2021 تک جا سکتی ہے, پھر آخری 2030 تک کا. تو یہ ایک لمبا سفر ہے مختلف مراحل میں جہاں اسپیشل اکنامک زونس وغیرہ بھی آئیں گے, اس میں منصوبے لگیں گے اور پائے تکمیل تک پہنچائیں. بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ملک میں ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل بڑا ضروری ہے. اچھا, ایک خبر سے پہلے امید صاحب آپ نے خبر پہ انالیسس کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کیونکہ مختلف کالرز بھی جب کال ان کرتے ہیں, بڑے بزنس مین کی میں بات نہیں کروں گی لیکن متوسط طبقہ جو ہمارے پاس ہے ان کا ریشیو بھی زیادہ ہے, اور جب ہمارے پاس کالز آتی ہیں تو وہ اپنا کنسرن بھی شو کرتے ہیں کہ جب ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری کو کسی نہ کسی طرح کوئی, ان کو لگتا ہے کہ کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اس بات کو اس کو آپ کلیئر کر دیجیے گا. لیکن خبر میں پہلے شامل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی اس طبقے سے ہوں جن کا ٹیکس ہر مہینے بہت باقاعدگی کے ساتھ کٹتا ہے, اور جب آپ ایسی خبر سنتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے کہ بجٹ میں نیا ٹیکس نہیں لگے گا, عوام کو ریلیف ملے گا. شہباز شریف صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے وہ تو یقیناً اپنے صوبے پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی بجٹ کا ایک معاملہ ہے, ہر صوبہ اپنے حساب سے بجٹ بنا رہا ہے. اب وفاق کی بجٹ کل میٹنگ اسحاق ڈار کی سربراہی میں بھی ہوئی ہے, اس میں ہر سال تو جب بھی بجٹ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نیا بجٹ نہیں لگے گا, مگر گھما پھرا کے کچھ نہ کچھ نئے بجٹ لگ ہی جاتے ہیں, وہ اس کے کان سے ادھر سے پکڑے جا ادھر سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. حکمران ہمارے کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ تو صوبائی حوالے سے, لیکن کچھ چیزوں کا بجٹ میں اور ٹیکسز میں فیڈرل رول ہوتا ہے. بالکل, وہ وفاقی بجٹ دیکھیں کہ کیا آتے ہیں سامنے, ابھی اس کی پلاننگ چل رہی ہے, اسی مہینے کے اینڈ تک ساری چیزیں واضح ہوا میں نظر آ جائیں گی. مگر لگتا ہے کہ جیسے بھائی نے کہا, اختیار بھائی نے, کہ سی پیک کے بعد بہت ساری تبدیلیاں موجود ہیں اور اس کے بعد بجٹ پہ بھی اس کا اثر رہے گا. اگر ٹیکسز کو ہم لوگ کم کریں گے بہت ساری چیزوں میں, سبسڈی کو رکھیں گے, خاص کر کے ایگریکلچر کے معاملے میں ماضی میں بھی سبسڈی بہت زیادہ دی جاتی ہے, اب بھی اس کو دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنی جس طرح خواتین کے استعمال کی چیزیں ہیں یا عام لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء ہے, اس پہ سبسڈی جب تک نہیں دیں گے پھر جتنی بھی گیم چینجر لائیں تب تک پاکستان میں تو گیم چینج کوئی بھی نہیں ہو سکتی. عوام اپنی کھانے پینے کی اشیاء اور روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان پہ سبسڈی چاہتا ہے, اور سبسڈی ان کا رائٹ بھی ہے. زیادہ ٹیکس نہیں لگنی چاہیے, اگر ٹیکس ہم نے لگا دیے تو مسائل بڑھیں گے. ٹیکس ہمیں مل رہے ہیں اور پاکستان کا ہر عوام چھوٹے سے بڑا ٹیکس دے رہا ہے. آج کا سیلری کلاس جو ہے یا کچھ رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ تو باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں. صاحب, ہمارا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, وہ بھی دودھ جو آج کل اس کے جو ملتا ہے پیکٹ, اس پہ بھی ایک ٹیکس لگتا ہے. وہ تو مرنے تک کے ہر چیز پہ ٹیکس ہے, چاہے کپڑا جب مر کے بندہ چلا جائے ٹیکس تو ہر چیز پہ موجود ہے. مگر اس طرح سے ٹیکس کا استعمال ہے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ, کرپشن میں تھوڑی بہت کافی خاتمہ ہو چکا ہے, مگر اب تھوڑی بہت جو کرپشن اس ملک میں رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے تو ٹیکس ہم کتنی بھی کم کر دیں پاکستان بہت آگے ترقی کر سکتا ہے. ہمیں ٹیکس کے سسٹم کو بہتر کر کے کرپشن کو خاتمہ کرنے, پھر جو بھی جس طرح بھی سسٹم ٹیکس کا ہے تو لوگوں کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. میرے خیال میں بجٹ آنے سے سب سے زیادہ جو مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے. آتی ہے کہ مہنگائی ہوگی, ٹیکسز بڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کی اگر آپ کی انکم میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے تو آپ کی وہ انکم, وہ جو آپ کی بائنگ پاور ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کا بجٹ ہوگا, اس سے پاپولسٹ بجٹ کہتے ہیں, لہٰذا وہ تمام جز
جی. جو آپ کو واؤ کہنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ اس میں ہوں گے. انسینٹیوز ہوں گے. بالکل. اس میں مین سیکٹر جو وہ کور کریں گے. میں معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس لحاظ سے ذرا سی بات کروں گا کہ وہ کسانوں کو مراد دیں گے اور دینی چاہیے. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا 2 سالوں سے اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے, اس کی نیگیٹو گروتھ رہی تھی. سبسڈیز ہوں گی یوریا وغیرہ میں, دوسری ٹیوب ویل وغیرہ میں. اس کے ساتھ ساتھ صنعت کے لیے صنعت بھی ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ پک اپ نہیں کر سکی ہیں, اور صنعت کو بھی انہوں نے بوسٹ کرنا ہے, اور صنعت کو بوسٹ کریں گے تو جاب کریشن ہوگی. لہذا صنعت کو بھی انسینٹیو اس میں دینے چاہیے. اب کتنے دیتے ہیں وہ سوال نشان ہے. ٹیکس پہ جلدی سے آ جاتے ہیں. آپ ایک وہ طبقے سے تعلق ہیں جو کمپلسری ٹیکس پے کرتے ہیں, اور ان کا ٹیکس ڈیڈکشن سیلری سے ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ریونیو ہے جو اس سلسلے میں اس چینل سے آتا ہے. لیکن میرا اس میں سے 2 بات کہہ کے میں یہ بات ختم کروں گا کہ ہم جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں اسی پہ ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ برڈن کا بڑھنا جو ہوتا ہے یہ ٹیکس ڈویژن سے آتا ہے. تو بہت زیادہ ٹیکس آپ پہ لگے گا تو پھر آپ ویز آؤٹ سورسنگ گی اسے نکلنے کے لیے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ نئے لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ٹیکس نیٹ میں لائیں, اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر انہیں فیسلیٹیٹ کریں. یہ تو یہ تیسری چیز جو ہے کہ گروتھ ہونا بڑا ضروری ہے. گروتھ ہونا بہت ضروری ہے. بجٹ میں کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. وی ہیو کالر. السلام علیکم مسز صوفی. وعلیکم السلام. Nusrat beta, first of all, to begin with, you are wearing Agha Noor today. And to be very honest, the jacket or the coat style, whatever it is, the color and the entire style is totally complementing your personality. Thank you so much. بہت شکریہ. اور آپ کے گیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. بیٹا پوری دنیا کو اس وقت ویژنری لیڈرز کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی, چائنا کا نعرہ کتنا خوبصورت ہے, ٹو کنیکٹ کنٹریز, 1 بیلٹ 1 روڈ. پھر آپ دیکھیں, ابھی آپ نے خبر پہ بات تو نہیں کیا لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کل جو ہمارا اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا اس میں بہت سی اہم پیش رفت نظر آئی. اینڈ ود یور پرمیشن آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے فرما روا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک پچ پر ہیں, اور 1.5 ارب مسلمان امریکہ کے اتحادی ہیں. اینڈ وین اٹ کمز ٹو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, تو ان کی بہت سی باتیں تھیں. مجھے جو بہت اچھی لگی, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ یا ہم اپنا طرز زندگی آپ پر تھوپنا نہیں چاہتے, ہم آپ کو صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے. دہشت گردی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو تنہا کیا جائے. دوسری بات بیٹا, یس آئی کم ٹو دیٹ پوائنٹ ایز ویل, کہ دہشت گردی مذاہب کی نہیں, نیکی اور بدی کے درمیان جنگ ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹلی وچ اس دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آئدر یو آر اے جیو, کرسچن اور مسلم, وی نیڈ ٹو لرن ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر, اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے. اور بیٹا سب سے بڑی بات, ان دا اینڈ ہمارے لیڈرز کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں بڑے بڑے نعروں کی ضرورت ہے. چھوٹا سا محدود نعرہ لگا دیں, گو نواز گو, رو عمران رو, نو, گو ملائیت گو کرپشن گو انتہا پسندی گو دہشت گردی گو, اور اپنی محنت پر, اپنی ایمانداری کو ویلکم کریں, محنت کریں, ترقی کریں, اور جو پازیٹیو مائنڈیڈ پیپل آل اوور دا ورلڈ ہیں, لیٹس جوائن آور ہینڈز ود دیم اینڈ لیٹس میک دس ورلڈ اے بیوٹیفل پلیس ٹو لیو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انہوں نے کافی ساری باتیں کہی ہیں, اور نیکسٹ ہم نے یہی ڈسکس کرنا تھا, یہ ڈسکس بھی کرنا تھا, اور خاص طور پہ جو اخباروں میں, کیونکہ انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس ویژن کو بھی شیئر کیا جو کافی لوگوں کو پسند آ رہا ہے, لیکن ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جو شاید کچھ لوگوں کو پسند آیا کچھ کو نہ آئے, وہ ایران کے حوالے سے تھا. پھر نواز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سوچ کا بھی خیر مقدم کیا کہ وہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں پہ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ تمام بیانات جو الیکشن میں ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دیکھے تھے, سنے تھے, اور اچھے بھی نہیں لگے تھے. کہیں پہ خدشات تھے, کہیں ریزرویشن تھی ہماری کہ مسلمانوں کو یہ بلاک کر رہے ہیں, مسلم ممالک کے لیے ویزا کے لیے انہوں نے پابندی, اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو بالکل لگ رہا تھا کہ مسلم بلاک کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس وزٹ میں انہوں نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی, اور اس میں انہوں نے جرنل براڈ بیس اپنی موڈیفائڈ اسٹیٹمنٹ دیا جنہوں نے ان تمام باتوں کو ریپلیس کیا. انہوں نے پہلے اسلامک ٹیررسٹ کہتے تھے, یہ آج انہوں نے ورڈ چینج کر کے کہا اسلامک ایکسٹریمسٹ, یعنی اسلامک دہشت گرد کے بجائے انہوں نے کہا اسلامی انتہا پسند.
ये बड़ा पॉलिसी चेंज है। हाँ, दूसरी चीज फिर इन्होंने ये कही कि मजहब पे बोला था कि जो दहशतगर्द हैं वो जो खुदा है वो लोगों को मारना नहीं चाहता, ये दहशतगर्द जो हैं ये लोगों को मारना चाहते हैं, तो ये तो मुसलमान ही नहीं है, हमारा मजहब इस्लाम जो है वो ये नहीं सिखाता। तो ये भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि मुसलमानों को उन्होंने देखा कि पूरा मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं है, और इसमें एक ग्रुप है जो इस तरह की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में मतलब विचार, उसको कंडेम दुनिया करती है, हम भी करते हैं। पाकिस्तान इन्होंने ईरान के बारे में जो आपका सवाल था बिल्कुल कहा कि ईरान को आइसोलेट करें। ईरान ग्लोबल टेररिज्म में एक मेन किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा ये इराक में, यमन में ये अपने लोग फंडिंग भेज रहा है, अपने लोग भेज रहा है, और ये एक चीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें हमने देखना है कि क्या हम हालांकि सऊदी अरब ने भी ये कहा कि हाँ ईरान जो है ईविल है, तमाम बुराइयों की जड़ है और ये टेररिज्म वहीं से फैल रहा है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमने इस तरह से अगर हम लाइन टो करेंगे तो हम मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट देंगे, सही है, और अलतशी अलहदा हो जाएंगे। इसमें हमें बड़ी एहतियात से हमें सबको साथ लेके चलना है, और इसमें ये हो सकता है कि वो लीडर जो मॉडरेट हैं वो अपना रोल प्ले करें और इन ममालिक को करीब लाएं। हमीद साहब से हमने इस बारे में इनपुट लेना है, लेकिन कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। जी फरमाइए। मुश्ताक और चकवाल से बोल रहा हूँ। मतलब ये है कि हम लोग पेंशनर जो है वो बहुत मुतासर हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं बड़ी, तो कम से कम मतलब 50% पेंशनरों को पेंशनरों जो है उनकी पेंशनें बढ़ाएं। बात नहीं समझ आ रही आपकी, कोई बात नहीं समझ आई। पेंशन जो है ना, पेंशन लोग, पेंशनर जो लोग हैं, हम लोग रिटायर्ड जो है। जी जी जी, पेंशन की क्या बात कर रहे हैं? पेंशन के हवाले से क्या क्या है? अच्छा, रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ाएं, वो हमने बजट की बात की ना, तो ये इस बजट में प्रपोजल है। हाँ, इसे आते हैं, लेकिन उससे पहले हमीद साहब जरा जो हम बात कंटिन्यू कर रहे थे, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बात ये है कि जिस तरह 55 इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब में रियाद में चल रही है, बात तो बड़ी अच्छी है, मगर ये कॉन्फ्रेंस जिस तरह हो रही है उससे इस्लामी ममालिक को आपस में मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी हमें एक बू नजर आ रही है कि कहीं न कहीं हमें आपको में डराया जा रहा है। जैसे माजी में बहुत सारे इस्लामी ममालिक को नुकसान हुआ, अफगानिस्तान की सूरत देख लें, इस तरह उस दौर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, मगर वो जो अफगानिस्तान की हालत बनी वहाँ पे फिर वही लोग जो इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस करा रहे अफगानिस्तान में घुस के बैठ के। इराक की अगर बात देखें तो इराक में भी इस तरह से पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मगर उसकी जो सूरत हाल हमारे सामने यही फिर इत्तेहादियों के नाम पे इस तरह करके मसरत हो गया, जो आज तक इराक की हालत ठीक नहीं हो रही। अगर शाम की हम बात देख लें तो शाम में भी ये हुआ। अब इस तरह सारी सूरत हाल देख के हमें समझ में आ रहा है, जो नजर आ रहा है कि ईरान को जो बात की तनाह करके वही हाल इराक, शाम और अफगानिस्तान उस तरह का करने की तरफ एक ढकेला जा रहा है। ईरान को अकेला करे, बड़ा बाकी इस्लामी ममालिक ईरान को छोड़ दे तना, फिर हम जैसे चाहे वैसे करें, वो उस शराइत पे माने नहीं तो फिर जैसी की तैसी करनी। सिर्फ इंतहा पसंद इस्लाम में नहीं है, इंतहा पसंद हर मजहब में मौजूद है। खाली ये अमेरिकी सदर का कहना कि इस्लाम में इंतहा पसंद, तो बाकी मजहब की इंतहा पसंद की बात करनी चाहिए। सिर्फ हमारे यहाँ तो इंतहा पसंद नहीं है, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ तालिबान नहीं है। अगर बाकी जो उनके हैं वो उनको भी देखा जाए, उनको पहले फंडिंग किसने की, उनको सपोर्ट किसने की, अगर ये बातें भी हमें थोड़ा खुल के देखना पड़ेगा। मगर हर जगह इंतहा पसंदी है और आपस में इस्लामी ममालिक को फिरकों के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, इस्लाम के नाम पे मुत्तफिक होना चाहिए, और तभी हम इस्लाम भी तरक्की करेगा और हमारे इस्लाम की तरफ कोई भी मेरी से नहीं देख सकता। हमारे साथ कॉलर है, लेकिन उनसे पहले मुझे एक बात ये करनी है जो अभी आप फरमा रहे थे कि ये जो हमने सफर तय किया है दहशतगर्दी से इंतहा पसंदी तक, ये एक वाकई मोटिवेशनल रिजल्ट है। लेकिन मुझे इसमें एक बात ये कहनी है कि जब भी आप स्टेट लेवल की कोई एक्टिविटी या कोई भी इस तरह इवेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको डिस्करेज किया जाता है कि आप टेररिज्म का वर्ड यूज ना करें, आप एक्सट्रीमिज्म का वर्ड यूज करें। और मेरे ख्याल में ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब हम खुद कोई चीज़ प्रीच करना शुरू करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो फिर वो दुनिया भर में उस तरह से देखा जाता है। तो हर चीज़ का ताल्लुक हमसे है। अगर हम अपनी इम्प्रेशन इस तरह का देंगे तो मेरे ख्याल में दुनिया भी उसे उस तरह परसीव करेगी और हमारे बारे में इमेज बनाएगी। हमारे साथ इस वक्त कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी कैसी हैं? जी ठीक ठाक जी। मेरा मौजूद इमरान से ना एक छोटा सा सवाल है जी।
کہ अरबों की पीठ में छुरा घोंपने वाले इसराइल की पीछे थपथपी देने वाला अरब ममालिक में खड़ा हो के अमेरिका के सदर ट्रंप अगर किसी को अमन और शांति का दर्श दे रहा हो तो क्या ये नहीं लगता कि कोई कज़ाक किसी को ये बता रहा हो कि अमन और सलामती क्या होती है, और हम क्या ईरान को मिस करके पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम कहें कि हम यहाँ अमन या इंतहा पसंदी के ग्लोबल सेंटर के इफ्तिताह करते हुए तालियां बजाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमारे यहाँ मजे की बात ये है कि ऑब्वियसली अब लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, हाँ इतने अवेयर हो चुके हैं, सोशल मीडिया, टेलीविजन, व्हाट नॉट, तो हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है। सवाल आप लोगों ने याद रखना है, पेंशन की बात भी करनी है। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये कॉन्फ्रेंस के मतलब पहली बात मैं करना चाहता हूँ कि ये कभी भी हमें पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को खुशफहमी में, यानी जो भी कॉन्फ्रेंस लिंक्ड अमेरिका के साथ हो, कभी भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। इसके बैक में कुछ गलत बातें होती हैं, और ये जैसे ईरान वाला मसला इन्होंने यानी डिक्लेयरली सऊदी अरब और उसके ट्रेन ने किया, ये कतन मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तकसीम करने की साजिशें आज से नहीं बहुत पहले से होती रही हैं और होती रहेंगी। और ये ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ये तमाम बातें जो आप लोगों ने कही, आपके जज्बात, इसे हम आगे लेकर चलेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद एक और मेहमान भी यहाँ मौजूद होंगी। हम कुछ जो बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स पे भी बात करेंगे, और जितने भी आपके सवाल पेंडिंग है उसके जवाब भी लेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। तरंग का नया लाजवाब मजा, अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। एक सेहतमंद जिंदगी हमारे मुल्क के तमाम बच्चों का हक है, ताकि वो कामयाबी से आगे बढ़े, मगर पोलियो इस कामयाबी की आगे दीवार बनकर आपके बच्चों को सारी उम्र के लिए मादूर कर सकता है। पोलियो वैक्सीन इस खतरनाक बीमारी से बचाव का वाहिद रास्ता है। इस हवाले से एक अहम बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि ये कतरे मुस्तनद लेबोरेटरीज से तस्दीकशुदा और महफूज है, इसीलिए बच्चों को बार बार कतरे पिलाना कोई परेशानी की बात नहीं, हत्ता कि बीमारी की हालत में भी पिलवाना महफूज है। अपने बच्चे को इस मूजी बीमारी से बचाने का मौका हरगिज जाया ना करें। जब भी सेहत मुहाफिज घर पर आए, अपने 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। यूं बार बार कतरे पिलाने से ही दुनिया के लाखों करोड़ों बच्चे पोलियो से महफूज हुए हैं, और बेशतर मुल्कों से पोलियो की बीमारी का खात्मा हो चुका है। याद रखें, पोलियो लाइलाज है, पोलियो के कतरे बचाव का वाहिद रास्ता है। वाकई कुछ नया है चाय में। क्या राज है? तरंग का नया लाजवाब मजा। आज तो मुझे भी लाजवाब कर दिया। रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा जुबान पर रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। वेलकम बैक। और बहुत सारे आपके सवाल जिसके जवाब अभी हमें लेने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ जैसे कि आपको पता है ख्याल बेग साहब मौजूद हैं, अमीन भुट्टो साहब मौजूद हैं। अब हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, शाहिदा मुर्तजा इनका नाम है। टेलीविजन का एक फेस है जिनको आप ड्रामा में भी देखते रहे, शोज में देखते रहे, और इनका ताल्लुक आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स से भी है, और स्पोर्ट्स में खुसूसी तौर पर हमने इनके साथ बड़े प्रोग्राम किए हैं। तो आज हमने सिलेक्ट किया कि हम शाहिदा को जब यहाँ बुलाएंगे तो हम स्कूबा डाइविंग के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अभी भी शाहिदा हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो स्कूबा डाइविंग या इस तरह की चीजें करना चाहते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, और मेरे ख्याल में स्ट्रेस रिलीवर होती हैं ये तमाम चीजें, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है, क्योंकि लोगों का एक जुमला आता है कि जी पाकिस्तान में पता नहीं उस तरह की केयर की जाती है नहीं की जाती। अगर हम स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं या स्नॉर्कलिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा ना हो कि हम पानी में गए तो बस चले ही गए या कोई और हादसा हो गया। तो आज अच्छा मौका है, यू कैन क्लियर इट अप, लोगों को कुछ बताइए इस बारे में। सॉरी, बिल्कुल। जैसे आपने बात की स्नॉर्कलिंग की, सबसे हम पहले स्नॉर्कलिंग की तरफ आते हैं।
स्नॉर्कलिंग जो है लाइक अ स्विमिंग है, ठीक है। जैसे आप स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग तो कर ही रहे होते हैं, तो स्नॉर्कलिंग में आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, आप पानी के ऊपर ही रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपने अंदर भी जाना है तो 2 फीट से ज़्यादा आप अंदर नहीं जाते स्नॉर्कलिंग में। और रही स्कूबा की बात, तो स्कूबा डाइविंग में हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं ऐसे, और बहुत अच्छे हैं, ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे हैं। अब मतलब इसका ट्रेंड बहुत चल चुका है और काफ़ी लोग अब करते हैं। और लोग स्कूबा डाइविंग के लिए आपको स्विमिंग आनी जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, स्कूबा डाइविंग में एक्चुअली करते क्या है वो लोग? शायद अभी भी हमारे यहाँ, क्योंकि पीटीवी बहुत दूर दूर तक देखा जाता है पाकिस्तान में, तो कोई ऐसे लोग होंगे शायद जिनको अंदाजा नहीं होगा अभी कि स्कूबा डाइविंग क्या है। तो कैसे स्कूबा डाइविंग होती है और क्यों करते हैं स्कूबा डाइविंग? जैसे दुनिया, लोगों को शौक होता है ट्रैवलिंग का, कि हम देखें कि दुनिया भर में कैसी कैसी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के लोग हैं, और किस तरह के अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ें बनाई हुई है। इसी तरह की सबसे ज़्यादा देखें, हम आर्टिफिशियल चीज़ें दुनिया में तो बना सकते हैं, लेकिन समंदर के अंदर नहीं बना सकते। समंदर के अंदर टोटली नेचुरल चीज़ें हैं, और ये भी एक दुनिया है, एक अलग सी दुनिया। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको हर वो चीज़ मिलती है। ये दुनिया देखने आप बेसिकली अंदर जाते हैं? ये दुनिया। और कितना अंदर जाते हैं आप? नीचे बिल्कुल आप डीप तक चले जाते हैं, और वहाँ आपने, अच्छा वैसे देखें, सबसे पहले तो हम जब स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तो आप चढ़ना के हम इस साइट पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर 20 से 25 फीट तक होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं कि वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते, उन्हें सिर्फ शौक होता है कि सिर्फ हम जाकर देखें, तो वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिन्हें क्रेज होता है तो वो बिल्कुल नीचे फ्लोर तक जाते हैं, और आप पहले स्टार्टिंग 20 फीट से लेते हैं, फिर 30, 40, 50, जहाँ तक आपका स्टैमिना है। इसमें कोई डर नहीं लग रहा होता अंदर डीप वाटर जाते हुए? कोई आपको सी एनिमल का खतरा हो कि कोई ऐसा शार्क्स है और है कुछ भी? सिक्स शार्क तो हमारे यहाँ बहुत कम होती है, बहुत ही, मतलब समझे कि 3 साल 4 साल में एक बार नजर आती है यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको फुल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप प्रॉपर करते हैं, डाइवर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग देते हैं। नहीं, डाइवर ना भी बने, चले आप 1-2 दफा जाना चाहते हैं तो कोई ऐसा मिसहैप होने नहीं, बिल्कुल नहीं, तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके साथ दूसरे ड्राइवर साथ होते हैं। और डॉक्टर्स भी हमारे साथ होते हैं, तो हम पूरी टीम को लेकर चलते हैं साथ। और अंडर वाटर भी डाइवर्स के साथ ही जाते हैं? बिल्कुल, हम अकेला नहीं छोड़ते ना उन्हें। जब तक उनको प्रॉपर तरीके से नहीं आता तो उन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके साथ 3 ड्राइवर्स होते हैं, एक ड्राइवर तो प्रॉपर आपके साथ ही साथ चल रहा होता है, एक आपको जो है सिर्फ आप फील्ड कर रहा होता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे होती नहीं है। अब तो माशाल्लाह से लोगों को इतना ज़्यादा इससे शौक हो चुका है कि फ्री डाइविंग का भी लोग अब कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप, हम पहले स्कूबा इक्विपमेंट्स के साथ करते थे, लेकिन हम फ्री डाइविंग अब कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें आपका स्टैमिना आपको साथ देता है, आपकी एज को फॉलो करता है, फिर उसके बाद आपकी स्किन और बहुत सारी इसमें बीमारियां हैं वो भी इसमें खत्म होती हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस है वैसे ये डाइविंग वगैरह का? जी, हम अभी बैंकॉक वगैरह गए थे तो वहाँ पे वो टूर का हिस्सा था, एंड बच्चे वॉज वेरी एक्साइटेड एंड दे वांट टू गो अगेन एंड अगेन, एंड आई वेंट फॉर एक्सपीरियंस। अच्छा। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। और अंदर की जो चीजें खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाई हैं इस कायनात में, वो आपको देख के एक अजीब सा होता है, लेकिन एक फेयर एलिमेंट रहता है कि बस देख लिया अब चलो वापस। लेकिन बच्चे जो हैं उनका ये फेयर एलिमेंट नहीं होता, वो वांटेड टू सी मोर एंड मोर एंड मोर। लेकिन वहाँ पे भी बड़े ट्रेन लोग साथ होते हैं। ट्रेन लोग होते हैं, बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ है अब बस मेरे जहन में आ रही है तो आपको कह रही हूँ कि एक मूवी भी इस हवाले से बनी जिसमें बहुत से लोग ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें होती थी। मैं पाकिस्तानी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ। और उसमें एक जुमला था जब डाइविंग करनी थी कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है इसके बाद। तो मैं उस जुमले के बारे में अभी आपसे बात करते हुए सोच रही थी कि पानी के अंदर जाने के बाद ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है या आपकी वो फीलिंग बदलने वाली है, वो क्या है? मैंने भी आपसे कहा ना यही चीज कि अंदर जाके आपको एहसास ही नहीं होता, डिफरेंट वर्ल्ड में बिल्कुल आप अपने आप को डिफरेंट महसूस करते हैं। जो चीजें कुदरती देखते हैं, जो मछलियों को आपके पास से जा रही हैं, नीचे मोती हैं, दूसरी चीजें हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो आप कंसीव कर ही नहीं सकते यहाँ बैठ के, आपको अंदाजा ही नहीं है कि अंदर क्या खूबसूरती है। हाँ, तो वही तो मैं करना चाह रही हूँ ताकि फिर मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर हो जाऊँ कि चली जाऊँ। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बात ही कहूँगी, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि अगर आपने अपने आप की थोड़ी सी लाइफ को चेंज करना है तो समंदर क्रॉस कर लें, ठीक है। जब आप इतनी सी बात पे यकीन रखते हैं कि समंदर के ऊपर ही आप क्रॉस कर लें तो आप समझते हैं कि आपकी बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। जब आप समंदर के अंदर जाते हैं
लेकिन जब वो अंदर से आपका टोटल कॉन्सेंट्रेट उसी के अंदर होता है, और उसके बाद अंदर जो चीज़ें आप देखते हैं और फिर आप जो महसूस करते हैं, आप टोटल रिलीव अपने आप को महसूस करते हैं। जब आप बाहर आते हैं आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। अच्छा, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल, ओके, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ बिल्कुल है इसके अंदर, और ये लाजमी है। आप अगर स्कूबा ना भी करें, आप स्नॉर्कलिंग करके भी देखें। देखिए आप जब पूल में जाते हैं, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा में क्या फर्क है? स्नॉर्कलिंग आपने कहा मैंने कि थोड़ा बताया सा, हाँ वो बिल्कुल, इसमें ये होता है कि आप एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है और वो एक पाइप टाइप होता है जिसको आप सिर्फ ऊपर से ही करके उसमें आप ब्रीथ कर सकते हैं। लेकिन आप जब स्कूबा के लिए जाते हैं तो आप गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग उस सिलेंडर से होती है। जो फ्री डाइविंग करते हैं तो फ्री डाइविंग सिर्फ आपका स्टैमिना आपका साथ देता है, जितना स्टैमिना इतनी आप सांस रोक के कर सकते हैं। तो ये तीनों में ये फर्क है। क्या बात है। ओके, जो हमारी पेंडिंग चीजें थी वो भी डिस्कस कर लें। हमीद साहब, पेंशन के बारे में भी कहा था हमारे कॉलर ने कि पेंशन जो है उसका रेशो, उसका थोड़ा सा परसेंटेज बढ़नी चाहिए। सूरत-ए-हाल है बिल्कुल वो कम है। पेंशन से जो वाबस्ता लोग हैं बहुत सारे मुश्किलात का शिकार है। यकीनन उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, जितनी भी बढ़ाएं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है मगर उनकी पेंशन नहीं बढ़ती, खासकर जो कम तनख्वाह वैसे मुझे इस बारे में ये अंदाजा नहीं है, पेंशन जो एक दफा होती है बस वही रहती है या कभी उसमें कुछ इजाफा हो जाता है? बजट में बढ़ती है, 10%, 15%, 20%। महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी होती है, वो 50%, 100% बढ़ चुकी होती है, मगर 5%, 10% और 20% तक के ज्यादा पेंशन बढ़ाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार कोई सही लमसम अमाउंट बढ़ा के उनकी जिंदगी को तब्दील किया जाए, जब तक वो जिंदा होते हैं तो उनके हालात बेहतर हो। बाकी एक और इवन उनके जाने के बाद भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके पास कोई औलाद नहीं है, उनको पेंशन मिल रही है। इशू होता है ना, तो वो होता है उनकी सन कोटा वगैरह जॉब की, वो भी उसमें इशू है कि कोटा उनको नहीं मिलती है। बहुत सारे इदारों में प्रॉब्लम है, तो लोग उनके बच्चे दर बदर घूमते फिरते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, तो एक इशू तो अपनी जगह मौजूद है। बाकी पहले जो सवाल था जिसपे हम लोग बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस पे, उससे मैं एक दो कॉलर्स की बात थी, तो उसमें ये कहूँगा कि हमें इस्लामी ममालिक को सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ उठाई है, दहशतगर्दी का सामना किया है, वो पाकिस्तान ने। और बड़ी अफसोस की बात से मैं ये कहूँगा कि कल की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का कहीं तक जिक्र नहीं किया गया कि जी पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना किया, अरबों रुपये पाकिस्तान के तबाह हुए, पाकिस्तान की मैशत तबाह हुई, पाकिस्तान की सनत को नुकसान हुआ, यहाँ के लोग दरबदर हुए। इकानमी तौर पर जो हम लोग आज मुश्किलात का दिन देख रहे हैं, वो सिर्फ इसी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी और दूसरों का मतलब बड़ा मासूम ख्याल है, क्योंकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। फिर भी वो एक जमाना तो वो डूमोर वाला भी था मेरे ख्याल में, उस जमाने में भी हम बड़ी डिस्कशन करते थे इसी तरह बैठ के स्टूडियो में। करिए। और दूसरी बात कि उन्होंने कल एक बड़ी अजीब बात की कि जी वो सबसे जो नुकसान हुआ है भारत को, ये तो बिल्कुल हैरत वाली बात है। इस तरह का उनका बात करना, जुमला बोलना कि पाकिस्तान के सब लोग ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह की बात की जा रही है। आगे बढ़ाते हैं कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेंशनर्स के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि भारत ये हकीकत है कि माजी में भी और हुकूमत ने पेंशनर्स का ख्याल रखा है, और उनकी एक इकदाम ये भी अहम हुआ था कि किसी रिटायर्ड पर्सन के इंतकाल की सूरत में उसकी पूरी पेंशन जो है उनकी विडो या बेवा को मिल जाती थी, और उसमें ऑनलाइन सिस्टम भी आए, लंबी खतानें भी बड़ी हद तक कम हुई हैं। लेकिन फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो मुमकिन थे बहुत सी खवातीन हजरात ऐसे माशाल्लाह जो 80s और 85, 90s में इंजाबी सकते, और कुछ हालात ऐसे हैं उनका अपना दवा इलाज बुढ़ापे में और उनकी अपनी औलादों में उनसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो बराए मेहरबानी पेंशनर को जो भी मुमकिन रिलीफ पेंशन वसूल करने के हवाले से, इजाफे के हवाले से मुमकिन हो सके जरूर दें। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब अपनी बात को आप कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं, मैं यही बात कह रहा था कि ट्रम्प की स्पीच में मुझे दो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। एक ये है कि जब दहशतगर्दी की बात होती है तो जहाँ और ममालिक का नाम लिया तो पाकिस्तान का नाम फोर फ्रंट में पाकिस्तान आता है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं या आप कह रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया, बल्कि उस मुल्क का, भारत का जो दहशतगर्दी में उसका कोई भी हमारे मुकाबले में कंट्रीब्यूशन नहीं है और नुकसान उसने नहीं उठाए, उसका नाम मेंशन करना एक बाइस स्टेटमेंट नज़र आता है। जो इतने बड़े इजलास में जिसमें 35 ममालिक के दर्जनों हेड ऑफ द स्टेट्स ने हिस्सा लिया है, और मुस्लिम और अमेरिकन कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे आया है, एक तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरी ये है कि ईरान के बारे में जो आइसोलेट कहा है कि आप अलहदा कर दें इसको,
वो मैं समझता हूँ कि एक मुस्लिम उम्मा को 2000 बार सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से रिकमेंडेशन और प्रपोजल कितना काबिल अमल है। मगर बात यही है ना इख्तियार साहब कि अगर लोग इस बारे में मशवरा दे रहे हैं तो हमने शायद अपनी हिस्ट्री ऐसी बना रखी है कि वो मशवरा दे सकते हैं। अब देखें अगर हम अनडिवाइडेड होते तो कौन हमें मशवरा देता है ऐसा। लेकिन पाकिस्तान का एक अपना रोल है, वो नेबर है हमारा। शायद दूसरे ममालिक का वो नेबर ना हो, ईरान पाकिस्तान का नेबर है। हमें हर एक नेबर से को हॉस्टाइल नहीं बनाना, हमने यू कैन अफोर्ड। और फिर जो हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, $56 बिलियन कर रहे हैं, और जो रीजन में आने के 3 रास्तों को दरवाजे को ताला लगा रहे हैं आप, ये तो रीजनल कनेक्टिविटी नहीं हुआ। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, ये 3 नेबर आपके, इनको आपने अलग कर दिया। चीन का चौथा जो है वो एक खुला रहे, तो ये नहीं होगा। इसमें आपने मॉडरेट रास्ता है। और तुर्की के जो सदर हैं एर्दोगान साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब, ये मॉडरेट लोग हैं। ये ईरान के साथ बैठ के सऊदी, ईरान और दूसरे अरब ममालिक के माबैन जो रिफ्ट है उसको कम कराएं और एक टेबल पे लेकर आएं। टेबल से हटा देना हल नहीं है, कभी भी टेबल पे ला के डिस्कस करके हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये मुसलमानों को मशवरा तो हर एक को देता है। अमेरिका का एक चीज याद रखिएगा, इलेक्शन जीता ट्रम्प एक जुमले पे, अमेरिका फर्स्ट, यानी जो भी पॉलिसी होगी वो अमेरिका के मफाद में पहली होगी। नेशनल इंटरेस्ट पहला क्या होगा? अमेरिका होगा, बाद में दूसरी कंट्रीज होगी। लेकिन इख्तियार साहब, दिस इज नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो भी कंटेस्ट करता है, चाहे वो अमेरिका के लिए करे, पाकिस्तान के लिए करे या इंडिया के लिए करे, तो वो ऑब्वियसली अपने मुल्क को ही कहता है कि तो, ये पहले है, यहाँ की आवाम पहले तो है। अमेरिका के सदर की जो सिफारिशात हैं, जो रिकमेंडेशन है या हिदायत हैं, वो आप इस जहन में क्लियर रख लें कि वो उनके मफाद में पहले हैं और बहुत बाद में आपके मफाद में आ सकती है या नहीं आ सकती। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी बात ऐड करूंगा कि जिस तरह अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे किए हैं, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के मुआहदे हैं, और इस वक्त मैं इत्तेफाक से 1.5-2 महीना पहले सऊदी अरब में मौजूद था, तो वहाँ की जो सूरत देख के आया हूँ वो बड़ी डिफरेंट है। मैं माजी में बहुत बार जाता रहा हूँ, तो उसमें वहाँ पे आने वाले वक्त में इंतहा की सूरत नजर आ रही है और गुर्बत वहाँ पे भी पड़ चुकी है। जब उन्होंने यमन के साथ ये जंग में हिस्सा लिया है और जंग लड़ी है, तो जाहिर बात है उनकी इकानमी खुद नीचे आके बैठ गई है। खुद पाकिस्तान की तरह वो अब सऊदी अरब पैसे मांगता कर रहा है। उस वजह से सऊदी हुक्मरानों से मुझे लगता है कहीं न कहीं गलती वो कर बैठे हैं। जिस तरह ये पैसे लेके उनकी हालत अब ऐसी है कि आने वाले 10-15 साल में सूरत जैसे हमारे बहुत सारे गरीब ममालिक है ना, वैसे ही खुद देखता हुआ है। और दूसरी बात, $400 अरब के एग्रीमेंट हुए, 110 के दिफाई मुआहदे हुए, और दिफाई मुआहदा ऐसा था शादी हो गई, आपकी जिंदगी भर साथ रहना है, क्योंकि जो इक्विपमेंट आएंगे उसके स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज आती है, एक सिलसिला फिर जुड़ जाता है उन जहाजों को चलाने के लिए और उन इक्विपमेंट यही हथियार देखे ना डॉक्टर साहब, जब उनको दिए जाएंगे तो फिर दूसरे एक ब्रेक आ गया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये मुआहदे अब हुए हैं, लेकिन कुछ मुआहदे सऊदी अरब के पिछले 2-3 साल पहले भी कुछ इस तरह के मुआहदे हुए थे और उस मुआहदे के बेसिस पर वहाँ काम हो रहा था, और फिर एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया था कि उनकी वो जो क्रेन्स थी और बाकी चीजें थी वो उसमें नेग्लिजेंसी कुछ बरती गई थी। इम्पोर्टेंट बात करनी है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। रंग का नया मजा बनाए, लाजवाब चाहे रंग खिला खिला जगाए, खुशबू ऐसी कि दिल को पाए, मजा इसका पे रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय।
पाकिस्तान से एक बात करूं। वेलकम बैक। एंड जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की उसके बारे में ये दोनों मेहमान जो हैं कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे शायद से एक बात ये करनी है क्योंकि पिछले दिनों हमने बड़ा सेशन किया और पीटीवी न्यूज़ पे तो वो नशर होते रहे, हम फिल्म पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे थे। हुकूमत उसमें बहुत तवज्जो दे रही है और ये सोच रही है कि ये जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं या ये जो हमारी एक्टिंग, एस्थेटिक्स, आर्ट, इसके जरिए हम दुनिया भर में वो पैगामात लेके जा रहे होते हैं जिसके बारे में हम शायद यहाँ बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप लोग करते हैं, आपकी तरह के एक्टर्स करते हैं। आप जब एक्टिंग करती हैं तो मतलब अपने पैशन के को देखते हुए करती हैं या उसमें आप और आपके हमअसर लोग पाकिस्तान के बारे में या कल्चर के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल देखें, लेकिन डिपेंड करता है फुल स्टोरी की जब हम काम कर रहे होते हैं कि स्टोरीज पे, ठीक है। स्टोरीज अगर कल्चर पे होती है तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कल्चर को ही डिफाइन करें जो प्रॉपर है, उसमें कोई भी हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ना करें, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हम प्रॉपर ड्रेसिंग, लैंग्वेज, स्टाइल वगैरह हर चीज़ हम उसी तरह का ही इसको क्लियर करते हुए चलते हैं आगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो भी एडवांस होती चली जा रही है, लेकिन हमारे कल्चर के बारे में हमारी जनरेशन को अभी बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता है। और इसी तरह अभी बहुत सारे ड्रामे, फिल्में इस पर बन रही हैं और इसके अलावा किसी और स्टोरीज पे अगर काम करते हैं तो आपको उसी तरह चलना होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब उसमें एक्टिंग करते हैं तो प्रॉपर नेचुरल एक्टिंग करते हैं, उसमें आपको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी पूरी तरह कोशिश है। ये कोशिश होती है, इस पर गौर करते हैं। जी जी, आप जो है बहुत बेकरार हैं। यू आर वन ऑफ दोज एंकर्स कि यू आर माशाल्लाह, आपकी ग्रिप है और आप चीज़ों को समझ के अपना इनपुट भी देती हैं जो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़रा सी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ ये सऊदी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हाँ, देखिए, सऊदी कॉन्ट्रैक्ट जो हादसा हुआ था वो बिन लादेन इनकी सऊदी कंपनी थी और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो क्रेन गिरी थी, लोग खाने काबा में, हरम शरीफ में शहीद हुए थे और उन्होंने उस पर बैन लगाए और उस कंपनी को रोक दिया, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए और ये एक बहुत अच्छा एक्शन था जो दुनिया ने देखा। ये बात इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, मैंने इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं किया। अब उसकी मैं नेचर बदला देता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो डिफेंस का है कि भाई अब उन्होंने एक नेटो की तरह एक अपनी इत्यादी फौज बनाई है, जनरल रायल साहब उसके हेड है, उस फौज को क्विप भी करना है। फिर ये यमन के साथ दूसरी जगह जो इनका हॉस्टाइल एक एटीट्यूड है उसके लिए आपको जहाज चाहिए, आपको अपने सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए, विजिलेंस सिस्टम चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों के $110 बिलियन का वो हो गया। उसके बाद इनकी अपनी ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर है जिसमें अमेरिकन कंपनीज की कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर हैं जो उसके एक्सप्लोरेशन और उसकी जो प्रोडक्शन के मुताल्लिक है वो अपना अलग है। इस तरह के ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये लॉन्ग टर्म में 4 साल के ये नहीं है। तो और ये जो डिफेंस वगैरह की जो करते हैं, अच्छा एक और उसमें कि जो अमेरिकन फदाई कंपनियां हैं जो जेट हैं वो या तो एयरबस है दुनिया में या जेट का है जो अमेरिकन हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश होती है किसी मुल्क में जाएं, टेबल पे बैठे तो बोलें जी इतना फीसद तो आपने आपकी एयरलाइन हमारे अमेरिकन ले जहाज और बाकी फिर साथ साथ यूरोपियन यूनियन कहती है हमारे लिए, तो एक बैलेंस करके चल रहा है। तो ये मुआहदे लॉन्ग टर्म है कि उसमें इतनी आसानी से नहीं निकला जाता क्योंकि फिर इन मुआहदों के बाद कुछ डाउन पेमेंट्स होती है, फिर प्रोडक्शन में शुरू होती है और ये चलते हैं। लेकिन सवाल इसमें जो ज़रूरी चीज़ हुई है कि एक तरफ सऊदी की मईशत की बुरी हाल है क्योंकि ऑयल की प्राइसेस गुज़श्ता कई सालों से रॉक बॉटम पे पहुंच के अब थोड़ी चाहिए 50 के आसपास, लेकिन 120 से $125 से नीचे आ गई। पूरी माशत तबाह हो गई। टैक्स लगाने गल्फ कंट्रीज लगा रही हैं, GSTs लगा रही हैं, अब उन्होंने लोकल लोगों को जॉब दे दी है। सुपर मार्केट में सऊदी ख्वातीन अब काम करने पहली बार जिंदगी में आ गई जो कभी नहीं उनको इजाजत थी। तो ये उस माशत से अगर इतना बड़ा हैवी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरह के ऑब्लाइजिंग होते हैं, अकोमोडेटिंग होते हैं। ठीक है। याया साहब की कॉल भी है। मुझे लगता है कि सीपैक के बाद जो है ना लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करें, पाकिस्तान से ना ही करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सर? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर भाई को भी सलाम हो और सॉरी प्यार मुस्ताह पे सलाम हो और हमारे दूसरे दोस्तों को सलाम हो। मैं एक्चुअली आप सीपैक की बात कर रही हैं, बात यानी सऊदी अरब और अमेरिकन रिलेशन की भी बात कर रही हैं। मेरा डॉक्टर से सवाल ये
کہ دیکھیں ہم لوگ کیونکہ ہمارے انٹرنیٹ افیئرس کا کوئی پروگرام ہوتا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت سی نالج نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو فیڈ بیک ہے اس میں کتنے لوگ انوالو ہو رہے ہیں, کیا لوگ اپنے مفادات میں انٹرسٹ ہے. میرا سوال آپ سے یہ کہ سعودی عرب جو ہے دنیا کے 3 بڑے اسلحہ خریدنے والے ملکوں میں سے ہو گیا, شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ آ گئے. اب یہ جن لوگوں سے اسلحہ خرید رہے ہیں آپ ان کے عزائم آپ کو بھی پتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مسلمانوں کے مفادات کو کور کر سکتے ہیں, تحفظ دے سکتے ہیں, جو یہ معاہدے انہوں نے کیے ہیں, یا ان پہ جو ریلائی کر رہے ہیں لوگ, کیا اس میں ڈیپتھ ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, ان سے ہم جواب آپ کی بات کا لے لیں گے. یحییٰ صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے سعودی عرب پاکستان کو پسند کرتا ہے؟ دیکھیں سعودی عرب پاکستان کو پسند ضرور کرتا ہے. دیکھیں ہر ایک ملک کے اپنے فائدے, ہمارا اپنا کنسرن ہے. سعودی عرب سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ سعودی عرب سے جو ایک کنسرن ہے نا وہ تو ہے, وہ آپ کو دونوں. سعودی عرب کی مجبوری ہے پاکستان کو ساتھ رکھنا. نصرت یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو سپورٹ میں کرے. تو کہتی ہوں جب اختیار بیگ صاحب آ کے بتاتے ہیں نا کہ جی یہ گیم چینجر ہوگا, تو میں کہتی ہوں سب کی مجبوری بن جائے پاکستان کو ساتھ رکھنا. بالکل, اللہ کرے. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے پاکستان کی زمین اللہ پاک نے ایسی جگہ بنائیے کہ لوگوں کی جیو پولیٹیکل سچویشن. ہمیں اپنا کام یہ کرنا ہے, ہمیں اپنے مفادات کو نظر پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ دونوں لوکیشن کی وجہ سے تو آپ مجبوری ہیں, وہ تو مجبوری ہے, وہ کوئی نہیں بدل سکتا. ہاں بالکل, لیکن ہم نے اس کو ذرا آگے پھیلانا ہے, اور ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ اگر اتنے خطے میں مضبوط کر لیں کہ دوسرے ممالک ولنگلی یا ان ولنگلی ہمارے تھرو چیزیں کریں اور ہماری فیسلٹیز کو استعمال کریں اپنی لاجسٹک کاسٹ کو کم کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی, کیونکہ آنے والے وقت میں نہ ڈپلومیٹک ریلیشن میٹر کرے گی, نہ پولیٹیکل ریلیشن شپ میٹر کرے گی, صرف اور صرف آپ کی جو حیثیت ہے وہ اکنامک سچویشن آپ کی لے کر آئے گی. آپ معاشی طور پہ کتنے مضبوط ہیں, وہ آئی بلو آئی کا تارا بنیں گے, یا آپ کتنے برڈن ہیں, کمزور ہیں, نیوسنس ہیں, بوجھ ہیں, یہ پورا. لہٰذا یہ ایک لکھا ہوا روڈ میپ آنے والے وقت میں ہمیں آنے والی نسلوں کو یہی پیغام دینا ہے کہ خدا را ایک اپارچونیٹی ملی ہے, اس میں ہم اپنے ملک میں دنوں رات کام کر کے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے جائیں جہاں پہ ہمیں خطے کے لوگ کم از کم جو ہیں وہ ہم پہ ڈپینڈنس بھی ہو, ہمیں عزت سے بھی دیکھیں, ہم ان کی مجبوری بھی بنے, اور ایک ہمیں وہ وقار ملے جو پاکستان کا حق بھی ہے, جو پاکستان کا منصب بھی ہے. اچھا, آپ نے ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کر دینا ہے, لیکن شاہدہ سے مجھے ایک بات پوچھنی ہے. ہم اتنی باتیں کرتے ہیں یہ سیریس والی, اور خبروں میں بھی آتا ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو, میں نے آپ کی دیکھا ہے, کبھی اس کو آپ نے سوچا ہے کہ اس کو بھی میں آپ چائنیز سکھاؤں؟ سی پیک ہو رہا ہے, بڑی چائنا کی باتیں ہو رہی ہیں, اتنے چائنیز گھوم رہے ہیں مالز میں, ہر جگہ ہیں, ہر جگہ. آئی مین وہ جو باہر وہ ہائی وے پہ جو ہوٹل ہوتے ہیں, باہر تخت پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں, وہاں بھی آ رہے ہیں, وہ مال میں بھی جا رہے ہیں, سب جگہ جا رہے ہیں, تو سوچتے ہیں. اچھا, میں بچوں کے معاملے میں بالکل فری مائنڈ ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ جیسے میرے پیرنٹس نے میرے لیے سوچا ہے کہ جو اس نے کرنا ہے کریں. میری فیملی میں آلموسٹ جتنی بھی خواتین ہیں سب لوگ بہت پردہ کرتی ہیں, تو واحد میں ہوں جسے بہت شوق تھا کہ میں باہر نکلی اور اتنی کمرشل لائف میں بھی آئی, لیکن مجھے میرے پاپا نے بہت فری ہینڈ دیا کہ جو کرنا ہے کرو. اور اسی طرح میں اپنے بچوں کو بھی ہے کہ جو کمائیں گے, تو میری بیٹی کا شوق ہے پائلٹ بننا, میرے بیٹے کا شوق ہے پائلٹ بننا, میرا بیٹا آرمی اسکول میں, اور اس سے میں آرمی کا پائلٹ بنوں گا. تو میں ہمیشہ جو ہے کہ اس طرح ہی کہ کبھی یہ نہیں سوچا میں نے کہ میں یہ کر رہا ہوں بچوں کو, یہ وہ نہیں کرانا ہے, لیکن یہ لینگویج کوئی بھی چیز آگے چینجز آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں چائنیز سیکھنی پڑے. ہو سکتا ہے. کالر ہیں, السلام علیکم احسان صاحب, یو کے سے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بھی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ سوئم میں یہ تو پتہ چل گیا کہ اسٹیج کے لیے بہت ضروری ہے, مگر عام آدمی کے لیے علیگ کلاسوں کے یہ سوچ لیا ہے, سوئمنگ پول تو بڑے شہر میں مجھے نظر نہیں آتا, یا عام آدمی کی رسائی ہو. اور دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ پینشن کے لیے بزرگوں کو اتنا خال ہونا پڑتا ہے, ساری انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, اینڈ پہ جب اپنی پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو قطاریں دیکھ کے ہمیں, آپ کو پتہ ہے کیا حال, اس کا کوئی حال نہیں ہے. اے ٹی ایم کیا تو آنے لگی ہے پہلے حالات, یہ ذرا سا چینج ہو گیا ہے. پہلے حالات یقیناً خراب تھے, پورے دن وہ ویٹ کرتے تھے, لائنیں لگتی تھی دھوپ میں, اور پھر حساب چلا جاتا تھا, لنچ ہو جاتا تھا, اور یوں بیچارے شام میں جا کے کبھی مل جائے تو بڑی خوشی سے وہ گھر آتے تھے. لیکن اب یہ سسٹم چینج ہو رہا ہے,
अब ऑनलाइन ट्रांसफर का एक सिस्टम किया गया है, नेशनल बैंक में एक पूरी रिफॉर्म्स लाए हैं। अच्छा, कुछ इसको जल्दी से कंक्लूड कर दें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बनाने के लिए जरूरी है कि आपस में इत्तेहाद करें, किसी की डिक्टेशन लेने के बजाय अपने इस्लाम के लिए, अपने ममालिक के लिए, अपनी खुद मुख्तार मुल्कों के लिए आपस में इत्तेहाद करके सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी करें तो सबके मुल्क तरक्की करेंगे। और पाकिस्तान तो इसी नारे पे बना है, इसी नारे पे चलेगा। पाकिस्तान इस्लाम पे नारे पे बना है और इस्लाम के नारे पे ही हमेशा कायम और दायम रहेगा। और पाकिस्तान हमेशा खुद मुख्तियार रियासत है, रहेगी, और किसी की डिक्टेशन पाकिस्तान के लोग नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा से लेके हर बंदा बाशऊर हो चुका है। वो इसलिए बाशऊर हो जाए तो बहुत अच्छा है, बाशऊर है और इकोनॉमी हवाले से हम बिल्कुल संजीदा हैं। और अभी माशी हब पाकिस्तान को बनाते जा रहे हैं, और पाकिस्तानी माशी अब बन चुका है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान अंधेरों से निकल के उजालों में बन के सारी दुनिया के लिए रोशनी और मशअल्लाह बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे शो की रोशनी इसी तरह कायम रहेंगी। एक ब्रेक आ गया, थैंक यू सो वेरी मच, आप सब यहाँ मौजूद रहे और इस रोशनी को आगे बढ़ाएंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज़ में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमा गुलजार। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे पर पुख्ता यकीन रखता है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बढ़ते खतरा दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने इस जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। हमारे हजारों शहरियों ने जानें देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत भारी कीमत चुकाई। वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की रियाद में सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा, बुराई की कुव्वतों का कलाकमा मुश्तरका जिम्मेदारी है। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का रियाद में अमरीका अरब इस्लामिक सरबरा इजलास से खिताब। इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है। दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, जुल्म और बर्बरियत से है। नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नए इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आगे आए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ग्लोबल सेंटर का कयाम। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में मरकज का इफ्तिताह किया। समिट में शरीक मुल्कों के सरबराहान भी मौजूद। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत बजट तैयारी इजलास। आइंदा साल के मीज़ानिये में आवाम की फलाह बहबूद और बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बजट तैयारी का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए, वजीर खजाना की हिदायत। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की बरसी पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते सील।
शहरियों को घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। सलामती कौंसिल के बार बार इंतबाह के बावजूद शिमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया का एक बार फिर एहतजाज। अफगानिस्तान के सूबे जाबुल में सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर तालिबान के हमले, 20 पुलिस एहलकार हलाक, 10 जख्मी। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान के बादशाह खान ने रॉयल रंबल फाइट जीत ली। हजारों शायकीन की आलमी शोहरत याफ्ता पहलवानों की रेसलिंग के शानदार मुकाबलों में गैर मामूली दिलचस्पी। पाकिस्तान के रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर अब्दुल जब्बार भट्टी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। उन्होंने ये तारीखी कारनामा इतवार को दिन 1:45 पर सर अंजाम दिया। अब्दुल जब्बार, नजीर साबिर, हसन सत्तारा और समीना बेग के बाद माउंट एवरेस्ट सर करने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। जुड़वा शहरों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मलाकन, गुजरावाला, सरगोदा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रखिए। इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी भरी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। वेलकम बैक। और अब हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में सुबह में मैंने इतनी तमहीद बांधी थी कि हम मुख्तलिफ इवेंट्स सब करते हैं और यूजुअली इवेंट कंपनीज को भी हायर करते हैं। इस वजह से इवेंट कंपनीज या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ आ गए हैं। नए नए ऐसे चेहरे आ गए हैं, ऐसे नाम आ गए हैं जो बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी लोगों में बड़ा एस्थेटिक सेंस है। ख़वातीन खुद भी बड़ी कोशिश करती हैं कि अगर कोई इवेंट उनके घर का है तो वो डिफरेंट हो। वो किस तरह से डिफरेंट हो वो डिसाइड करती है। जिस तरह मैंने कहा कि एंट्रीज प्लान होती हैं, मेहंदी के फंक्शंस आप देखते हैं डिफरेंट प्लान होते हैं, बर्थडेज पे डिफरेंट प्लानिंग्स होती हैं। वो सजावट से लेकर एंट्री से लेकर कोई रक्शे में आ रहा है, कोई स्कूटर पे आ रहा है, कोई किसी तरह से आ रहा है। बल्कि एक तो हमारी बहुत ही फेमस, शी इज़ अ फ्रेंड टू, सिंध के पॉलिटिक्स कल्चर में तो काफ़ी फेमस हैं। वो तो अपनी मेहंदी में घोड़े पर आई थी। तो इस तरह काफ़ी लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल में उसका सहरा हमारी इवेंट कंपनीज को भी जाता है जिन्होंने बहुत नई नई चीज़ें मुतारिफ कराई हैं। हमारे साथ सबसे पहले डायरेक्टर एंड CEO इवेंचुअली की मौजूद हैं जोया अल्ताफ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने इसका नाम इवेंचुअली लिखा, ये जो अंग्रेजी का वर्ड है इवेंचुअली या ये दूसरा वर्ड है? ये अंग्रेजी वाला ही वर्ड है। हाँ। लेकिन जो इसमें डिफरेंट है इसमें वाई नहीं ई है। काफी लोग पूछते वाई सिंस इट्स इवेंट तो इसलिए ई है। और इवेंचुअली हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं अपनी कन्वर्सेशन में कि इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग दिस, इवेंचुअली आई विल डू इट। हाँ, so this is why it's eventually. Eventually. Yeah. Eventually you will have to come to them. Yeah. Eventually you need to plan your event through us only. क्या बात है, इसीलिए इसका नाम आपने इवेंचुअली रखा। रख दिया। ओके, कितना अर्सा हुआ आपको जोया?
It's almost 3 years now. Like by profession I'm accountant. मैंने अपनी accountancy मतलब education complete करके I started my business. Accountant क्या accountancy? Seema accounting. Management accounting. Okay, Seema, you have done that, completed? Yeah. अच्छा ये वो वाली सीमा नहीं है, ये CIMA वाला सीमा है ना? जी बिल्कुल. हाँ, ये सीमा आप समझेंगे पता नहीं कौन सी सीमा पढ़ ली है इन्होंने. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. हाँ, this is CIMA, Course Institute of Management Accountancy. Yes. ओके, कंप्लीट हो गया? हाँ. आर्टिकल्स वगैरह सब सारी चीजें, और जो लास्ट पेपर था उसमें आई गॉट नेशन वाइड पोजीशन है. अरे वाह, तो कहाँ अकाउंटेंसी और कहाँ इवेंट? मैंने एक दो जगह पे काम भी किया, लेकिन जब मैंने काम किया तो आई रियलाइज आई डोंट बिलोंग हियर. आई नीड समथिंग जो जिसको मैं एंजॉय कर सकूं. और अच्छा, अकाउंटेंसी को एंजॉय नहीं किया तो पढ़ते वक्त क्या था? मुझे नंबर्स बहुत पसंद है, लेकिन वही नंबर्स मैंने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किए. नाउ यू वुड नो कि कहाँ टैक्स देना है, कहाँ क्या होगा, कौन सी. तो और कोई मतलब मुझे पता है कि किस तरह बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीजें आ जाएंगी. खैर मैं इनके साथ बातों में गप में मसरूफ हो गई, और हमारी दूसरी मेहमान जो है उनका भी तारुफ करवाते चलें. सायरा फैज इनका नाम है, और सायरा फैज से आज आप बहुत फैज़याब हो सकते हैं. कैसे? क्योंकि ये बहुत से सिंगर्स को प्रमोट करती हैं, न्यू टैलेंट को प्रमोट करती हैं. तो यू कैन कॉल इन. आज आप इन्हें गाना सुनाइए, और अगर इन्हें लगेगा कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं या बन सकते हैं, बन सकती हैं, तो हो सकता है इवेंचुअली ये आपके साथ मिलके कुछ कर सकें. ठीक है, तो आप सायरा को कॉल भी कर सकते हैं, गाना भी सुना सकते हैं. और सायरा खुद भी शी इज एन एक्टर एंड अ सिंगर. आज ये आपको गाना भी सुनाएंगी, और उसके अलावा से लेकिन मुझे इनके पोर्टफोलियो में ये चीज़ बहुत ही पसंद आई कि आप लोगों को प्रमोट करती हैं. तो इसके बारे में पहले हमें सायरा थोड़ा सा बताएं कि अगर मैं आपको गाना सुना दूं तो आपको लगे कि इनका गाना सही है, आवाज सही है, तो आप मुझे प्रमोट करेंगी? इज इट लाइक दैट? इंशाल्लाह जरूर. ये ऐसे ही होता है. चांस चाहिए. आप गाना सुनाओ. अभी नहीं, बाद में. अभी रिहर्सल. अच्छा, नहीं मैं तो बिल्कुल गाना नहीं गा सकती, तो आई एम आउट. लेकिन जो लोग गाना गा सकते हैं, तरीकाकार यही है या कुछ और है कि आपको गाना सुनाएं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रमोट करती हैं? गाना सुनाते हैं, आवाज देखती हूँ, आवाज चेक करती हूँ, उसके बाद उनको जिनको शौक होता है, जुनून की हद तक शौक होता है, उनको फिर आगे लेके. ये कैसे पता चलता है कि इसको जुनून की हद तक शौक है? पूछना पड़ता है, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको बुलाते हैं ऑफिस में, ताकि इनको पता चल जाए कि हाँ भाई ये कितना आगे जा सकते हैं, कितना टैलेंट है इनके अंदर. तो किस तरह से आप प्रमोट करती हैं, क्या करती हैं? मुख्तलिफ अकेडमियाँ बनी हुई हैं, अकेडमियों में भी जाना होता है, जहाँ पता चलता है कि कौन सी अकेडमी? फॉर इंस्टेंस एक जी अकेडमी है, और काफ़ी मतलब इस तरह के मुख्तलिफ इलाके में जो छोटी छोटी अकेडमियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर बैठे हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ के मालिक बैठे हुए हैं. तो उनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, बेचारे ऐसे गाते रहते हैं. कॉलर है, इनके बाद आपने मुझे बताना है कि किसी भी सिंगर को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या करते हैं. ठीक है, प्रमोशन अगर किसी की करनी है तो क्या करेंगे आप, जरा आज पता चले ना. हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम शुमाइला. वालेकुम सलाम. आपकी क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. तुम बताओ क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सलामत रखे, खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. आमीन तुम आमीन. जी आप मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं. ठीक है, मेरी सिस्टर नहीं है, मैं आपको सिस्टर कहती हूँ. अरे थैंक यू सो मच. वैसे मेरे सिस्टर एंड ब्रदर दोनों नहीं है, तो तुम्हारे जितने बहन भाई हैं वो मेरे ही हैं. चलो डन. जी आप मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए. पर्सनल नंबर चाहिए बेटा? हाँ. एक जमाने में मैं देती थी, कौन सा, 42092211, लेकिन ये अब सबको पता चल गई इसके पीछे की कहानी. तो पर्सनल नंबर नहीं है, आप अपना नंबर पैनल पे छोड़ो, मैं आपको कॉल कर लूंगी. थैंक यू सो मच. अच्छा वैसे तुम लोग पर्सनल नंबर पे क्या करोगे? पता है जितनी अच्छी बात ऐसे कर सकते हो ना, कैमरे के पीछे मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ वैसे. ये लोग भी अभी अच्छी बातें कर रहे हैं, कैमरा बंद होगा उसके बाद बस फिर बस ख्याल रखना, फिर जैसे ही 11 बजने वाले हुए असली हाँ जी, आप बताएं मुझे सायरा कि कैसे वो जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि लोगों की समझ आए. देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है, एक्टिंग, सिंगिंग, और जिन लोगों को भी प्रमोशन चाहिए होती है, आप भी बताना इसमें, कि लोग बहुत से धोखे भी खाते हैं. बिल्कुल सही है ना. बहुत से ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो कहते हैं हम आपकी वीडियो बना देंगे, हम आपको आपका एल्बम रिलीज कर देंगे, आप बस 30,000 दे दें, 50,000 दे दें, या जो भी रकम उनके साथ तय होती है, और उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करके छोड़ देते हैं. तो ये तमाम जो बिजनेस है, इससे कैसे बचें, कैसे सही लोगों के पास जाएं, और सही तरीकाकार क्या है? अगर आपके पास आए तो क्या सही तरीकाकार है?
ये तरीक़ेकार है कि मैं बिल्कुल जिनकी आवाज़ सही होती है, टैलेंट होता है, उनको बिल्कुल फ्रंट पे लेके आती हूँ। ना मेरा कोई पैसे का लेना देना है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि बस कैसे करती हैं? वो प्रोग्राम करती हैं, जैसे आज कौंसल है, नेशनल म्यूजियम है, इस तरह की बड़ी जगहों पे प्रोग्राम किया, सिंगर को प्रमोट किया, तो वो कमर्शियल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप अर्न करती हैं? जी बिल्कुल। सिंगर से आप नहीं? सिंगर से नहीं लेती। ओके, ठीक है। तो आज वैसे इनसे गाना पहले सुन लेते हैं, फिर हम आपसे आगे पूछेंगे कितने इवेंट्स आपने करा दी, कितना टाइम हो गया इवेंचुअली को? ऑलमोस्ट 3 years। ऑलमोस्ट 3 years, ओके। पहले सारा आपसे गाना सुन लेते हैं, कौन सा गाना सुनाएंगी? माइक, यस, माइक तो मेरे पास ही होता है। और गाना कौन सा सुनाएंगी ये बताएं। माड़ा है तो माड़ा से यार। ओह वाह भाई, सुनाए। वो माड़ा है ते माड़ा से यार जो है, कुछ भी हुए वो साडा प्यार जो है, क्यों मायेदा क्यों ढोलेदा, दिला करा लता लखवारी, बिस्मिल्लाह करा, हो बिस्मिल्लाह करा, वो माड़ा है ते माड़ा से यार जो है। थैंक यू। और मैंने सोचा ये बिस्मिल्लाह कहाँ आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कब होगा उसका भी इंतजार होता है ना कि एंड में क्या होने वाला है। खैर, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, गाने की प्रैक्टिस करती हैं, रिहर्सल करती हैं? शौक है, अभी थोड़ा कर रही हूँ। अच्छा, प्रॉपर प्रोफेशनली नहीं जाती हैं? हाँ, प्रोफेशनली नहीं, अभी शौक चढ़ा हुआ है तो बस थोड़ा सा मैंने। अच्छा, अभी शौक। जी, ओके, शौक लोगों को प्रमोट करते करते मैंने बोला चल थोड़ा मैं भी सीख लूँ। हाँ बिल्कुल, प्रमोट करते करते। नेक्स्ट कैसे प्लेसमेंट उसमें ऑडिशन क्यों नहीं दिया? इसमें सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। मैंने दिया है, सीख ही रही हूँ कुछ। ठीक है जी, अब आप दोनों अपनी पर्सनल बातें जो है ना बाद में कर दीजिए। हमारे साथ इम्तियाज साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इम्तियाज अली बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं इम्तियाज अली, ठीक है आप? बाजी जी, मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। हाँ हाँ, बात करने के लिए तो फोन किया आपने, तस्वीर थोड़ी आ रही है आपकी। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे मम्मी और पापा का कोई इख्तिलाफ है तो उसके बारे में कुछ हाल बताइए। अम्मी और पापा का? मम्मी और पापा का इख्तिलाफ है और बच्चे का मसला है, जैसे लेने देने। आपकी उम्र कितनी है इम्तियाज अली?
मेरी 19 साल उम्र है। 19 साल उम्र है। अच्छा, आपको क्यों लगा कि अम्मी अब्बू का इख्तलाफ को मैं सही कर सकती हूँ वैसे? और मुझे तो पता नहीं है ना कि इख्तलाफ की वजह क्या है। जी, इख्तलाफ की वजह ये है कि जो मेरे बाद के हैं ना वो अच्छे नहीं है, उनके बारे में वो जो है वो नहीं अपनी बेटी को नहीं भेज, मेरे नान के वो इधर से नहीं भेजते अपनी बेटी को। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है इम्तियाज अली। इसके लिए मैं प्रोग्राम रखूंगी एक दिन, आधे घंटे का स्लॉट तुम्हारा और तुम्हारे अम्मी पापा का, सही है? जी। और बस फिर हम मसला हल करके ही उठेंगे इंशाल्लाह। डन है? थैंक यू इम्तियाज अली। आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग ऐसे समझते हैं कि मसला सारा हम हल कर सकते हैं। वैसे बहुत शुक्रिया इम्तियाज, लेकिन ये मामला ऐसा होता है ऑन द सीरियस नोट कि आपको कहीं बैठ के तसल्ली से बात करनी होती है और पूरी बात सुननी होती है। एक कॉल पे मैं उस तरह से आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर कोई तरीका होता है या मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं उसके लिए हम प्रोग्राम रखेंगे और फिर आप उसमें कॉल कीजिए और बताइए कि क्या मसला है, तो हम आपका मसला शेयर करेंगे, ठीक है? अनकरीब रखेंगे इसी बीच में। अच्छा जी, आजकल जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें शादियों के इवेंट्स पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या नया आ गया है, जरा बताओ। किस चीज पे कोई भी लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है उनकी फैमिलीज या वो खुद किस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं? खाने पे पहले हो या पुराना जमाना हो या अभी का जमाना, सबसे ज्यादा लोगों का जो फोकस होता है वो जो अडल्ट होते हैं, जो फैमिली के बड़े बूढ़े होते हैं, वही चाहते हैं कि खाना बेस्ट हो, मतलब वेराइटी हो। वेरे जो बंदे या दुल्हा या दुल्हन होते हैं वो चाहते हैं कि बेस्ट शादी हो, सबसे यूनिक हो, एंट्री डिफरेंट हो। आजकल डिफरेंट तरह की क्या मतलब फेरी लाइट सेटअप होता है, पूरे में से फेरी लाइट्स लगी हुई होती, स्टेज डिफरेंट। फेरी लाइट्स क्या? हाँ, वो मैंने सुनी। चिली लाइट। ओह यस। अच्छा, वो चिली शेप की होती हैं? नहीं, नॉर्मल मतलब पतली पतली लाइट्स होती है। आज लोग पूरा रूफ कवर कर रहे होते हैं। तो और काफी सारा जो हमारे यहाँ जो वेडिंग का है वो मतलब इंडिया से बड़ा इंस्पायर होकर यहाँ कर रहे होते हैं वेडिंग। अच्छा। वहाँ पे जिस तरह के पहले इनिशियली पाकिस्तान में कोई एंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन वो इंडिया से काफी इंस्पिरेशन, मतलब क्योंकि वो भी तो एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, मतलब हर कोई चाहते थे डिफरेंट यूनिक। अच्छा, मेहंदी में कैसी एंट्री और शादी में कैसी एंट्री हो, जरा आज बताना। लेकिन हमारे साथ सऊदी अरब से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब, खैरियत है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कोई मैडम का अगर कोई सॉन्ग हो तो सुना दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैडम का सॉन्ग सुना? जी मैडम ने वीडियो उठा था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली। अब देखते हैं हम उसे पूरा कर सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अनदर कॉलर। जी खुरम साहब, यूके से आप बात कर रहे हैं। खुरम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, गाना सुनाना चाह रहा था मैं ना। अच्छा, सुनाए जरूर। आज आपके तो अगर इनको आवाज पसंद आ गई तो इनको बोल देना, मुझे सिलेक्ट कर लेना। ओके। आप यूके से कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, यूके में कहाँ से कॉल कर रहे हैं? लंदन से जी। लंदन में कहाँ से कॉल, मतलब कोई जगह? लंदन में कमर्शियल रोड देखा आपने ऑलगेट ईस्ट में? जो देखा तो नहीं है, सुना जरूर होगा। अच्छा बताइए, गाना सुनाइए। हाँ जी, गाना मेरा है कमीज तेरी काली, सोने फुल्ला वाली। सुनाए? हाँ जी, सुनाए। हाँ जी, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली। गौर से सुन लें आप। आगे भी तो सुनाए। जज्बा को कहती है जो जिसको पैशन हो मैं उसको प्रमोट करूंगी। आपका तो पैशन किधर है? एक गाने में आप शर्मा गए। पैशन अभी जो है ना, इधर रह के ना इंग्लिश गानों में ज्यादा पैशन। अंग्रेजी गाना सुनाए। चले अंग्रेजी गाना सुनाए। अंग्रेजी सुनना है? हाँ सुनाए। रॉकबाय बेबी, वो सुना हुआ आपने? नहीं, मुझे टाइलर स्विफ्ट का सुनना है, बताएं। किसका? मुझे टाइलर स्विफ्ट का सुना दें, मुझे जस्टिन बीबर का सुना दें, मुझे और नाम बताओ जिसका है, वो एडेल का सुना दें मुझे। हाँ एनवीके का सुना दें, किसी का भी सुना दें। सुनाए। जेनिफर लोपेज का सुना दें, और नाम बताऊंगी आप। हाँ, एकन का सुना दूं? किसका? एकॉन का? एकन। हाँ सुनाए। I'm locked up, come on let me out.
ایکون کے گانے چلیں. تھینک یو سو مچ. اب بھائی پیشن یہ تو صاف ظاہر ہے, فیصلہ ہو گیا یہاں پہ. کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ نہیں بس اس طریقے سے شوق ہے. ہاں محنت کریں, اپنی آواز بنائیں. ہاں میری طرح مجھے خود کو بھی ایکچولی اتنا نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ کوشش سے انسان ہو جاتا ہے. کوشش سے دنیا قائم ہے, تو انشاءاللہ بن جائیں گے سنگر اگر شوق ہے تو, جذبہ ہے تو. اور ایکون کے گانے تو ایکچولی اس میں کوئی ایسی سر تال نہیں ہوتی, وہ تو بس اچھے لگتے ہیں سننے میں. ہم تو 2-3 ہی یاد ہے نا. ایک تو یو آر سو بیوٹیفل وہ یاد ہے مجھے, جو کامن ہوتا ہے. ہاں وہ یاد ہے, اور رائٹ ناؤ والا جو یہ ہے وہ یاد ہے. تو یہ ناٹ دیٹ ایزی. ہاں خیر, ہمارے ساتھ نادیہ کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام نادیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ہاں سانگ سنگ کروں میں؟ ہاں ہاں سنا رہی ہیں. جی سانگ سنا رہی ہیں ہمیں؟ میں آپ کو سناؤں گی نا. ہاں ہاں سنائیں. بٹ سسٹر ہو تم؟ جی جی ڈیفینیٹلی بٹ سسٹر. ہاں جی سناؤ. حسرتوں کی ایک نشانی ہوں میں, خاموش ہوں آنکھ کا پانی ہوں میں, مجھے کوئی نہ پڑھ پائے, ہوں ایسی خوش کہانی ہوں میں. ربا میرے حال دا محرم تو, ربا میرے حال دا محرم تو. بس اتنا ہی آتا ہے. ارے بہت اچھا, ویسے تم نے بہت اچھا گایا, مجھے لگا بہت اچھی آواز اچھا گایا ہے نا. تھینک یو. آپ کو ایونچولی ٹھیک لگا؟ اچھا مجھے تو بہت اچھا لگا. نادیہ کیا کر رہی ہو اب؟ گانا کی پریکٹس کر رہی ہو, کچھ اور بھی کر رہی ہو؟ نہیں کچھ نہیں خاص, بس جاب کر رہی ہوں. اچھا میرے خیال میں بٹ سسٹرز بیٹھ کے رات کو گانے کی نشست کرتی ہیں. چلو اب تمہاری باری ہے نا. نہیں وہ تو سب میرڈ ہے, میں سنگل رہ گئی بس. اچھا چلیں جی, ٹھیک ہے. تو آپ کے گانے کے بارے میں پوچھ بھی لیتے ہیں, آن ایئر سنیں. تھینک یو سو مچ. انہوں نے تو سچا بولا کہ ہاں مجھے صحیح لگا, مجھے تو اچھا لگا. آپ بتائیں. مجھے بھی صحیح لگا. اگر تھوڑی سی محنت اور کریں گے تو انشاءاللہ بن جائیں گے. آواز تو خیر ان کی اچھی تھی. ہاں کوشش کرنے سے, استاد سے. ہاں آپ لوگ تو بڑا سور تال لے کے بیٹھے ہیں یہاں پر. ایونچولی میں سور تال ہی تو ہے ساری, جو سور تال ہے نا. آواز اچھی تھی بہرحال. اب ہمارے یہاں لوگوں کو جیسے موقع ملتے ہیں ویسے ہی کر سکتے ہیں نا. یہاں پہ کوشش کریں گے تو سنگنگ سیکھ سکیں. ناپا ہی ہے, لیکن کافی لوگوں کو ناپا کا پتہ نہیں ہے. خود ہی کرتے ہیں لوگ, یوٹیوب سے سیکھ لیا, یہاں سے سیکھ لیا, وہاں سے. بہت کم لوگ استاد کو اس طرح سے فالو کر پاتے ہیں یا سیکھ پاتے ہیں. یا کسی کو استاد مل بھی نہیں سکتا. مطلب یہاں پہ اتنا, انفیکٹ جب میں گٹار سیکھ رہی تھی, میرے مولوی صاحب نے کہا یہ کیا کر رہی ہو, حرام کام کر رہی ہو, ہاتھ سے نشان ہو جاتے گٹار سیکھنے سے. تو میں آ گیا گٹار. ویسے میں نے سیکھا تھا ناپا کے کسی ٹیچر سے, پھر مطلب اس نے کہا, پھر میری مما نے مجھے چھڑوا دیا. کہا نہیں آیا تمہیں؟ میں بیسکس آتے ہیں مجھے. And problems which have been coming up from time to time. It's indeed an achievement of maritime port shipping are being delivered much ahead of the contract schedule while meeting the best quality standard. It truly speaks for the dedication and professionalism demonstrated by the Director General PMSA, the project team in Pakistan and China, State Shipping Corporation, Exim Shipyard and PMSA ship crew. I congratulate Rear Admiral Akhtar for the leading from front to achieve a commendable milestone record time for strengthening the maritime sector. PMSS Dasht proudly standing in the front of not me but you today is practically manifestation of the hard work and the coordination all involved in this project of national significance. Ladies and gentlemen, while we are acknowledging the efforts of who contributed in this project with their mental facilities, physical labor, People Republic of China,
MS China Shipping and Trading Company, Marriott, and special mention since upload. I have met few Chinese engineers and technicians associated with the project and appreciate their valuable contribution. Their commitment to the project is indeed a commendable, show the strength of deep-rooted friendship between both countries. The relation between the two friends has stood the test of time, will be inshallah further flourish in time to come. Our bilateral relation will strengthen the further with more people-to-people interaction, development projects, technical education, economic and military domains. The construction of remaining 2 ships of the current project in Karachi shipyard is another fine example of mutual cooperation the two countries. The imperatives of the contemporary political and economical situation demand that Pakistan and China need further cooperation and enhance mutually rewarding the relationship. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, is committed to strengthen the state institutions through the capacity building, capability enhancement. Today, demanding the politico-strategic environment and economic conditions, the government of Pakistan is undertaking every effort to leading the nation onto the path of socio-economic progress. Be it built for road network, energy projects, industry growth, job creation, transportation of the nation, defense needed, we realize that current challenges requires strengthening our maritime sector for the providing safe, comfortable maritime environment, wherein role of Pakistan Maritime Security Agency is crucial. This crucial role of PMSA will get further pronounced as the maritime traffic grows in the region. Maritime patrol ship PMSA will not only provide requisite security for the merchant traffic, but will also ensure the proper law enforcement in the maritime zone against all kind of commercial activities. Ladies and gentlemen, I fully acknowledge the contribution of PMSA in safeguarding the marine resources, preserving future of Pakistan marine life and other economic resources. The achievement of PMSA regulating the fishing activity, controlling illegal practices are well known. It is encouraged that our maritime sector is gaining requisite focus, and our maritime security apparatus is also cruising up to meet the growing demand of the maritime domain. I convinced that investment in the similar projects actually investment in Pakistan's future. Toward the end, I once again congratulate and thank all those involved in the project at every level, in every department, in every ministry. We look forward that PMSS Dasht, along with other operational elements of PMSA, will accomplish against mandate and keep Pakistan flag flying pride. I, as a Baloch, once again thanks Rear Admiral Jamil for naming four 600-ton ships after the Balochistan rivers, which makes every Baloch very proud. This kind of respect and recognition will, inshallah, get together every province and its people to make them all proud. May Allah continue to bless PMSA for protecting maritime interests of Pakistan. Pakistan, Zindabad, PMSA, Paindabad, Pak China Dosti, Zindabad. Sir, last 2 words to the Navy officers. I, myself and Mushahid, we are meeting with your chief
So the naval chief told us that you, the both parliamentarians, are very helpful to Navy. We have told the naval chief, we too, me and Mushad Hussain, we are representative of Navy in the parliament. Thank you very much. Ladies and gentlemen, बंदरगाहों और जहाजरानी के वफाकी वजीर मीर हासिल खान बजंजो तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये तकरीब मुनक़िद हुई है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया गया। बहरी जहाज दश्त और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में इस जहाज की शमूलियत हुई है। चीन में बना हुआ तीसरा बहरी जहाज दश्त मैरीटाइम सिक्योरिटीज के हवाले किया गया। और इस तकरीब में मौजूद मेहमान खुसूसी बंदरगाहों और जहाजरानी के वफाकी वजीर मीर हासिल बजंजो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी और इस जहाज का मॉडल भी इस वक्त उन्हें पेश किया जा रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटीज पाकिस्तान के बहरी हदूद की पासबान और सिक्योरिटीज के हवाले से इसका अहम किरदार। चीन में तैयार करदा बहरी जहाज दश्त जो बलूचिस्तान के एक दरिया के नाम पे जिसका नाम रखा गया, ये शामिल हुआ है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटीज में और ये तीसरा बहरी जहाज है जिसकी चीन में तकमील हुई और इसे मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का हिस्सा बनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मीर हासिल बजंजो ने कहा कि पाकिस्तान चीन का दिफा के शोबे में ताउन बेमिसाल है और बिलखुसूस उन्होंने तस्करा किया चीन के माहिरीन का और चीन के शिपयार्ड का जिनकी लगन और मेहनत से ये शाहकार तख्लीक हुआ और इसे पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया गया। बहरी जहाज दश्त की मैरीटाइम सिक्योरिटीज में शमूलियत के मौके पर कराची में मुनक़दा तकरीब से बंदरगाहों और जहाजरानी के वफाकी वज़ीर मीर हासिल बजंजो खिताब कर रहे थे। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान की बहरी सरहदों की पासबान और दिफा के हवाले से इंतहाई मौसर कुव्वत और इस वक्त चीन में तैयार करदा तीसरे बहरी जहाज की मैरीटाइम सिक्योरिटीज में शमूलियत से पाकिस्तान की बहरी हदूद का मौसर दिफा करने में खातिर खा मदद मिलेगी। दश्त नामी ये बहरी जहाज जदीद तरीन मशीनरी और साजो सामान से लैस है और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नबर आजमा होने के लिए और पाकिस्तान की बहरी हदूद की मौसर हिफाजत के लिए इंतहाई अहम किरदार मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का और चीन में बना हुआ ये तीसरा ऐसा बहरी जहाज है जिसे मैरीटाइम सिक्योरिटीज का हिस्सा बनाया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए हासिल बजंजो ने इस बात का इजहार किया कि हम मशकूर हैं अपने दोस्त मुल्क चीन के जिसके ताउन से इस वक्त हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करें। एक बार फिर आपको इस तकरीब की जानिब लिए चलते हैं। हमें तौफीक बख्श कि हम अपने मुकाबले में दूसरों की जरूरियात को तरजीह दें। जिस अजीम मकसद की खातिर पाकिस्तान वजूद में आया उसके उसूल में हमारी मदद फरमा। हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी का जरिया और पाकिस्तान के बंदों पर अपनी बेपाया रहमत नाजिल कर हमारी कौम को इत्तेहाद और यकजहती की नेमत से मालामाल कर दे। या रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को एक नाकाबिल तस्कीर कुव्वत बना दे। हमारे बहरी बेड़े को हमेशा रवां दवा रखना। हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपनी बेलौस खिदमात और बेनज़ीर क़यादत से पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को मुस्तहकम, फ़ाल और रश्क ज़माना बनाएं। हमारे जहाज को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। तमाम खतरात और मुश्किलात में तू ही हमारा हादी, हाफिज़ व नासिर, कारसाज और वाहिद सहारा है। समंदर के अंधेरों और तूफानों में हमारा रहनुमा और दस्तगीर है। रब्बना ला तुअख्खिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्ल। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया गया चीन में तैयार करदा तीसरा बहरी जहाज दश्त और इस तकरीब से आपसे कुछ देर पहले विफाकी वजीर खिताब कर रहे थे मीर हासिल बजंजो और पाकिस्तान के बहरी हुदूद के दिफा के हवाले से एक इंतहाई अहम संग मील अबूर हुआ।
है चाय में। क्या राज है? तरंग का नया लाजवाब मजा। आज तो मुझे भी लाजवाब कर दिया। रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा जुबान पर रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। तरंग का नया लाजवाब मजा। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। वाह भाई, वाह भाई, वेरी वेरी नाइस। और ये वाले जो म्यूजिक है ये क्यों नहीं शादियों में यूज होता? मेरा तो दिल चाहता है कि ये यूज हो। ढोल, मतलब मेहंदी में तो आजकल तबले कव्वाली भी होती है, कॉन्सर्ट्स भी होते हैं प्रॉपर। पता नहीं आज तो कितनी सारी चीजें मेहंदी में होती है, लाइव परफॉर्मेंसेज होती है, और डांस होते हैं जो पूरे कोरियोग्राफर उसको कोरियोग्राफ करते हैं और फिर वो चल रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रीवियसली ऐसा कुछ होता ही नहीं था। अच्छा, ये तो हमने एंट्री पे बात की। एक और चीज़ है, बड़ा अच्छा सवाल हमारे पैनल से भी बढ़ के आया है कि इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से अब तो खैर मुझे लगता है शहरों में तो सबको पता है, लेकिन दूर दराज शायद ना भी पता हो। और शहरों में भी लोग ये कोशिश करते हैं, वो लोग जिनके पास पैसे अच्छे हैं और टाइम कम है वो तो इवेंट कंपनीज को हायर कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास पैसे सही हैं लेकिन वो समझते हैं कि इवेंट कंपनी को अगर हमने रखा तो ये तो हमारे बहुत खर्चा करा देंगे। तो ये आइडिया कैसे जाता है, क्या होता है इसमें, जरा बताएं। अच्छा, जो मतलब जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स लाइक बैंक्वेट, आजकल इतने सारे ऐसे बैंक्वेट्स आ रहे हैं जिसमें इवेंट प्लानर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो सारा सेटअप वगैरह है वो बैंक्वेट वाले ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर जो एडिशनल चीज़ें लाइक प्रॉपर स्टेज हो गया, प्रॉपर फ्लावर वर्क हो गया, उसके लिए फिर वो इवेंट प्लानर पूरे इवेंट के लिए नहीं करते, वो कुछ एलिमेंट्स के लिए हायर करते हैं। कुछ एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, अगर चले मैं आपको बोलूँगी जी मुझे एक शादी करवानी है और वो उसका बजट 3 लाख है, मतलब इसमें वेन्यू भी हो, खाना भी हो, सब कुछ हो। हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं बजट के साथ वो हमारे लिए आसानी होती है, और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं आप बजट दें, फिर जहाँ से उनको लोएस्ट कोटेशन मिलती है फिर वहाँ चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उससे दूसरे फैक्टर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, और फिर इन एंड जो इवेंट में लोग आते हैं वो समझते हैं कि इवेंट प्लानर की गलती है, वो ये नहीं देखते कि आगे से बजट कम मिला। अच्छा, एक अच्छी शादी कराची में या लाहौर में, बड़े शहरों का भी बता दो कि एक अच्छी शादी, क्योंकि वेन्यू उस हिसाब से होते हैं ना। छोटे शहरों में महंगी शादियाँ होती हैं, लाइक हमारे पास क्वेटा और जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से बड़ी कॉल्स, पेशावर, क्वेटा, इधर से कॉल्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन मसला क्या है कि वहाँ पर क्योंकि इवेंट प्लानर्स है ही नहीं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अब है ना वो पार्टनरशिप कर लें ताकि आप यहाँ से सामान भेजें वहाँ इवेंट प्लानिंग कंपनी, फिर वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं, जब कॉम्पिटिशन नहीं होता तो प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। जो सारा सामान कराची में इतना कॉम्पिटिशन होता है तो आपको यहाँ पे कंपेरेटिव प्राइसेस मिल जाती है। सिमिलरली इन लाहौर एंड इस्लामाबाद एज वेल। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं रसालपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, मैं आपका गाना सुनाना चाहती हूँ। एक गाना सुनाना चाहते हैं, सुनाए सुनाए सुनाए। जो मैं तो गाने के लिए मारा तुम्हारा कहीं यार नाइस बात थी, उसके लिए गाना मैंने खुद लिखा है। टीवी की आप आवाज बंद कीजिए फिर गाना सुनाइए। मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आप दोबारा कॉल कीजिए और कॉल करके जब टीवी की आवाज़ बंद हो, मैं तो इतना ज़्यादा आप लोगों से ये बात बता रही होती हूँ फिर भी टीवी की आवाज़ आ रही होती है, टीवी की आवाज़ बंद करें। और फिर हमारे साथ परवेज साहब की कॉल है हब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं तो सुना रही हूँ 9 बजे से। अब आप सुनाएं, आपकी बारी है। जी मैं सुना दूंगा। ये मैडम बैठी हैं प्रमोट करने के लिए कह रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी प्रमोट किया जाए। अच्छा, मैं भी सिंगर हूँ। अरे ग्रेट, आप हमें कोई गाना सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ सुनाए मैडम, आज गाना सुन के फैसला कर रही हैं। सही, थैंक यू। हाँ जी।
तू है पेड़ दुआओं वाला, मीठी मीठी छाओं वाला, तू है पेड़ दुआओं वाला, ठंडी मीठी छाओं वाला, दुख सह कर तू खुशियाँ बांटे, तेरा रूप वफाओं वाला, तुझ पे जा कुर्बान माँ, चुप हो गई जाने कहाँ माँ, चुप हो गई जाने कहाँ, कैसे ढूंढूं मैं तेरा निशान माँ, चुप हो गई जाने कहाँ, कैसे ढूंढूं मैं तेरा निशान माँ, तू है पेड़ दुआओं वाला, ठंडी मीठी छाओं वाला। जी शुक्रिया, शुक्रिया। मैडम को फैसला करने में अब आसानी होगी। थैंक यू सो मच। जी बताएं। वैसे बड़े दिल से गाया उन्होंने, लेकिन माँ वैसे कह रहे थे ना कि सब ऐसे लग रहा था रूहान से हो जाएंगे। माँ तो माँ होती है, लेकिन ये है कि बस कोशिश करें, कोशिश से ही दुनिया हाँ कोशिश करें, आवाज सुनाए। बात नहीं है बिल्कुल। मैंने इंशाल्लाह जरूर बन लेंगे। आपने पहली दफा सुना? मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। आपने भी फर्स्ट टाइम सुना है। तो खैर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, तो ब्रेक तो बनता ही है। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। रंग नया मजा बनाए, लाजवाब चाहे रंग खिला खिला जगाए, खुशबू ऐसी कि दिल को पाए, मजा रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। वेलकम बैक एंड हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इवेंट्स की हम बात कर रहे थे, इवेंट प्लानिंग की भी हमने बात की, सिंगर्स की भी बात की। एक चीज़ जो बहुत क्लिक हो गई, मैंने आज ये अंदाज़ा लगा लिया कि लोग हमारे यहाँ, मतलब मुझे अफसोस भी है क्योंकि इतने फोरम्स नहीं हैं और उनको पता नहीं है कि किस तरह अपने टैलेंट का इजहार करें। तो कोई भी चीज़ आप उनको ऑफर करते हैं तो बहुत लोग हैं जो रिस्पॉन्स करने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सही रास्ता अगर उनको पता हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका टैलेंट सामने आ सकता है। मौजूद है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस मिले। कभी पाकिस्तान आइडल स्टार्ट हुआ था, इसके अलावा बेसमेंट के अवेयरनेस, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि यहाँ जाके वो अपने टैलेंट को दिखा सकते। तो ये सारी चीज ये भी है, लेकिन वो भी कम है, उस तरह की तादाद नहीं है ना। और फिर उसमें भी अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया ये वो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ है। हेलो मैम, मैं नैयर बात कर रहा हूँ काड़ा से। जी जी नैयर, कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक। तो मैं भी एक्चुअली मैंने इसीलिए कॉल की, जैसे आपने कहा था कि प्रमोट करती है सिंगर्स को, तो मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। दिल ही दुखाने के लिए तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए दिल ही दुखाने के लिए
से मरासिम न सही फिर भी अभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी अभी तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए भी दुखाने के लिए थैंक यू नैयर साहब, आपने बड़ा अच्छा गाया, लेकिन गाया किसके लिए? चले गए? मैंने कहा आज इनसे पूछना पड़ेगा किसके लिए गाया, लेकिन अच्छा गाया। बहुत अच्छी आवाज़ है नैयर। और इसके अलावा ये है कि आप किसी अच्छे उस्ताद से, आप इतनी दूर रहते हैं, यहाँ कराची में तो आ नहीं सकते, तो किसी अच्छे उस्ताद से जाके क्लास लें और अच्छा सीखे तो इंशाल्लाह और अच्छी आवाज़ हो जाएगी। और अच्छी आवाज़ होगी। और तो वो प्रमोशन के लिए आपको कॉल कर रहे थे, प्रमोशन हो सकती है? अभी नहीं, अच्छी आवाज़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह अच्छी जगह प्रोग्राम रखेंगे। अपना नसीब है। मेरे ख्याल में आप उस वक्त ज्यादा प्रमोट करने की पोजीशन में होती हैं जब कोई पक्का सिंगर हो, ज्यादा अच्छा गाता हो। मतलब मशवरा देना किसी उस्ताद से, जब तक क्लास नहीं लेंगे तो उसके बाद आप प्रमोट कर सकती हैं ना, उससे पहले नहीं कर सकती। हाँ, स्टेज पे जैसे उनका प्रोग्राम पे नाम डालना, उनकी पिक्स लगाना, फिर उनका अपना वो है। अच्छा, थोड़ा बहुत तो किसी उस्ताद से, वैसे एकेडमी भी है, एकेडमी में सीख सकते हैं हमारी आगे। लेकिन आपकी एकेडमी है? जी बिल्कुल। अच्छा, वो कहाँ है? सदर में। क्या नाम है? एकेडमी सारा मीडिया प्रोडक्शन के हवाले से है। अच्छा, तो वहाँ के सिंगर्स को सिखाया जाता है? जी बिल्कुल। कौन है उस्ताद हैं कोई? उस्ताद यूसुफ और उस्ताद आफ्ताब खान। अच्छा, दोनों हैं और दोनों सिखाते हैं? उस्ताद हैं जी बिल्कुल। और आप भी सीख रही हैं उनसे? जी मैं भी सीख रही हूँ। आप भी सीख रही हैं? तो आज अगर उस्ताद ने आपके गाना सुना होगा तो क्या ख्याल है आपका, तारीफ मिलेगी या डांट होगी? अब ये तो सुनने वाले ही बता सकते हैं। सुनने वाले बता सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जाएंगी तो पता चलेगा, है ना? बिल्कुल। और बाकी अभी भी कुछ वक्त है, आप कॉल कर सकते हैं, दोनों से सवालात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपको इवेंट्स के हवाले से बता रही हैं और एक प्रमोशन के हवाले से बता रही हैं। और इवेंट्स प्लानिंग में आप खैर हम पर्सनल इवेंट्स की बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं जो आप लोग प्लान करते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट भी रिसेंटली हमने हुआवे वालों का इवेंट किया था। तो अब पहले अच्छा काफी सारी कंपनी के जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो पूरे इवेंट मैनेज कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि कहाँ से हर वेंडर से वो कोटेशन लेता है, जहाँ से लोएस्ट आता है वहाँ जाता है। लेकिन कुछ होता है जिसमें लाइक प्रॉपर प्लानिंग, लाइक कोई थीम चाहिए होती है, जैसे एनुअल डिनर हो गया और इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, तो फिर वो इवेंट प्लानिंग्स को दे रहे होते, इवेंट प्लानिंग कंपनी को दे रहे होते। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे पास, इरफान साहब रावलपिंडी से, पहले भी कॉल किया था शायद इन्होंने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान साहब। हेलो, आप लाहौर से बात कर रहे हैं? प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। और आप गाना सुनाना चाहते हैं अकरम राही का, सुना दीजिए। पहले भी मैं बात करती हूँ, मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। वाह वाह जी वाह। दुनिया ते गल्लां दे निशान छड़ गई, दुनिया ते गल्लां दे निशान छड़ गई, आए लोगो मैनू मेरी जान छड़ गई, उन्हें मुड़ के ते आना नहीं दोबारा, जेरी साथों दूर दूर गई, साडा ओदे पास होना नहीं दोबारा, जेरी साथों दूर दूर गई। गुल्लियां ते गल्लां दे निशान छड़ गई, आए लोगो मैनू मेरी जान छड़ गई, उन्हें मुड़ के ते आना नहीं दोबारा, तेरी साथों दूर दूर गई, साडा ओदे बाजू होना नहीं गुजारा, तेरी साथों दूर दूर गई। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब। दुख पूछे हमें, थक गए वो लोग म्यूजिशियन हमारे 9 बजे से। जी जी,
इरफान साहब, ये आपने दुख में गाया या किसी को याद करके गाया? मेरी ही याद। बस ये किसी को याद करके गाया। हाँ, और उसको बता दिया था तुम्हारे लिए टीवी पे गाना गाना सुन लो। प्लानिंग करी थी आप लोगों ने, हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग से ज्यादा आप लोगों की प्लानिंग है भाई। मान गए। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। इन्होंने मेरे ख्याल में मकसद दूसरा था, एमी प्रमोशन की बात कर ली। इरफान साहब, आपने जिसको अपनी बात पहुंचानी थी पहुंच गई होगी मेरे ख्याल में। पहुंच गई होगी, उनको भी बोल दिया होगा, मैसेज कर दिया होगा, है ना? तो बस जो, और बाकी तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा पंजाबी गाना होता है, मुझे तो सारा समझ आ रहा होता है लेकिन मैं उसे भूल जाती हूँ। तो जब मैं खुर्शीद भाई की तरफ देखती हूँ कि अगर पूछना पड़ेगा तो इनसे पूछूंगी कि वो जो लाइन थी ना इसमें जरा उसका, वो भी आज गाने सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है उनको, है ना? वो पंजाबी गाने जो आपने भी नहीं सुने होंगे शायद। हाँ वाकई, जो खैर आप लोग गा रहे हैं और आप लोग इस फोरम को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर किसी की अच्छी आवाज़ है और उनमें टैलेंट है तो अल्लाह करे भाई वो आगे तक पहुंचे। अच्छा मैडम, आप ये मुझे बताइए, इवेंट मैनेजमेंट की तो हमने सारी बात कर ली, व्हाट एल्स? आप आजकल की लड़कियों को किस तरह से इवेंट में बहुत मोबिलाइज देखते हैं और बहुत मेरे ख्याल में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं सब। लुडियों, पहले तो लुड्डी का कल्चर था, अब लुडियों से वो डांस परफॉर्मेंसेस आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जब इवेंट प्लानर की बात करें तो पहले तो प्रीवियसली मतलब इवेंट प्लानिंग कंपनी, अब बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो घर पे बैठ के मतलब घर के सारे इवेंट करती हैं, छोटे मोटे ब्राइडल शावर हो गया, बेबी शावर हो गया, वो घर में बैठ के कर रही होती हैं। तो मतलब उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया और मतलब अपने आप को बिजी भी रखती है, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही होती है। उसमें वो बेकिंग वगैरह भी खुद से कर लेती हैं। इनफैक्ट मेरी मॉम, मेरे जो थीम इवेंट्स होते हैं, जो छोटे ब्राइडल शावर मेरी मॉम को मैंने दिए हुए। अच्छा। तो वो सारे जो क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट है, जो छोटी छोटी चीजें बनाना, वो खुद सारी चीजें कर रही होती है। तो जितनी भी ब्राइडल शावर, बेबी शावर, वो मेरी मॉम कर रही होती है मेरे लिए। मैं उनको कोऑर्डिनेटर दे देती हूँ, बाकी सारी चीजें वो खुद मैनेज कर रही होती है। वो खुद भी अपने टाइम भी यूटिलाइज रही, गुड सोर्स ऑफ मनी एज वेल। हाँ ये बात है भाई। तो ये घर बैठे वो खवातीन जो हमेशा कहती हैं कि हम क्या करें घर में बैठ के, तो दिस इज अनदर आइडिया। हमने फूड का आइडिया हम आपको दे चुके हैं, कपड़ों का आइडिया, मेकअप, ये सारी चीजें तो लोग करते हैं। और घर बैठे क्या कर सकते हैं आप मुझे बताएं सायरा, आप पहले क्या करती थी? ब्यूटिशियन थी जी। पार्लर भी अभी भी है पार्लर। अच्छा, पार्लर अभी भी चला रही हैं जी? ओके। और पार्लर चलाते चलाते क्रिएटिव फील्ड में भी आ गई, वो भी क्रिएटिव है? हाँ, पार्लर में अभी लड़कियां रखी हुई हैं, मतलब वो काम करती हैं। तो आप एक्टिंग में कैसे आई? एक्टिंग में शौक था। नहीं, शौकिया तो आई, मतलब पार्लर चलाते हुए कैसे आई फिर? मतलब क्या, कैसे चांस कैसे मिला? चांस मेरी दोस्त थी फरत खान, सिंगर है, उनको मैंने बोला तो उन्होंने मुझे काफी मदद की। बहुत अच्छी खातून है। हाँ, उनके थ्रू आप? शौक है आपको? शौक है, तो अब इसीलिए शौक है, तो इसीलिए जो है ना मैं चाहती हूँ कि जिनके भी शौक हैं तो उनको भी मैं आगे लेके आऊँ। हाँ, आप इस दौर से गुजरी हैं तो आप ज्यादा इसको समझ सकती हैं। कोशिश है बस थोड़ी सी। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए, लेकिन आपको बहुत सारे लोग मैसेजेस और कॉल्स करते होंगे और हर किसी को तो आप अकोमोडेट नहीं कर सकती। हर किसी को आप जॉब भी नहीं दिलवा सकती हैं, हर किसी को आप स्क्रीन पे भी नहीं लेके आ सकती। कोशिश है, जो मुझसे थोड़ा सा काम हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है। महमूद साहब हैं नारोवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक गाना डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। किसको? ये जो मैम आपके पास बैठी है, ये मैं ये जो सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, इनको। अच्छा, इनको ही डेडिकेट कर रहे हैं? जी जी। कर दें भाई, कर दें कर दें कर दें। साजन प्रीत लगा के दूर मत जाना, मत जाना, ये हमारी
नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला जा मोहे सुंदर मुख दिखला जा। अच्छा एक बात बताइए, गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया, आप सीखते हैं गाना? जी मेरा एक ऑलरेडी गाना ऑडियो कंप्लीट हो चुका है। अरे वाह। अब इंशाल्लाह रमजान के बाद उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह मैं तो आप कराची आए तो हमारे शो में आइए, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है? थैंक इसी यू। नंबर पे कांटेक्ट करूँ मैं? हाँ हाँ इसी नंबर पे, सारे लोग ऊपर मुंतजिर हैं, आप उनको बता दें अपने बारे में। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तशरीफ आवरी का। ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। आप दोनों अच्छा काम कर रही हैं, आगे बढ़ती जाइए, अच्छा काम करती जाइए। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हो गया है, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आप ऐसे आइडियाज़ भी हमें भेजते रहिए जो आप समझते हैं कि हमारे शो का हिस्सा होने चाहिए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।